Hello, everybody. I welcome you all at Impetus, and I am Rishikesh, and I'll be conducting this particular course for you. Before I start with this particular course, let me give a brief introduction. You must have just seen a slide being played, but let me give a brief introduction about Impetus and then the course, and then we'll proceed with the further discussion. So Impetus was founded in 1999. And since 1999, we are involved in this training and development activity. So founded in 1999, and I was one of the founder members who founded this particular institute. And we have been over a period authorized training and certification center for a variety of technologies. Now, which are the technologies for which we have been authorized training and certification center? We have been partners with Oracle earlier. We had been partners with Autodesk, PTC, and today we are partners with C++ Institute to provide you international certification C++, and also Python. I just forgot to mention here, we are also authorized partner for Python right now. So anybody is looking out for international certification in C, C++, or Python, Impetus is the place. And a brief about me, I am Rishikesh, and I have more than 20 years of experience when it comes to teaching, development software, consultancy, and so on. So I'll be conducting this particular course for you. Now, you are all here. I am also a Java certified professional. You're all here to learn C programming language. I know there are a lot of doubts in your mind. Is this the language that I should start with? Does C hold any value today in the market? A lot of people tell you it's an old language. Oh, but this is what I have been hearing even when I started learning C in 1990. That's the time when I first learned C, started using C. People told me, it's an old language. 20 years have passed. 30 years have passed. This language has been introduced. You should learn C++. You should learn some other language. You should learn Python. You should learn Java. But remember, Python and C are there since 1990s. The C++ are there since 1990s. But then somehow this language has survived for all these years. It's so very surprising, or not so surprising, to find language still being very widely used. And how widely? You don't have to believe me. I'll just share some statistics with you. And as I share the statistics with you, it will be clear why does it make sense today for you to learn this language. While we hear about so many different languages in the market today, Python, C, C++, Java, JavaScript, and SQL, and Clojure, Haskell, Scala. There are so many languages. Kotlin, Go. People will tell you, naya Swift Swift pado, Go pado. Just let's see some statistics. So there is a company which maintains some statistics and gives you some interesting figures. I hope you can see the browser. You can anytime unmute and you can talk. Any questions if you have, you just have to unmute and you have to talk. Let me take you to a site, and that's TIOBE. So there is an index that this particular site maintains. It's a programming language index. As you can see here, they maintain index of programming languages. And they give you historical facts about all the languages and various search engine, how they calculate, all those things they have given. But what's more important for us is to see the statistics of those languages. Now, what statistics we would like to see? Oh, look at the number of languages that are there. There are so many languages that are there, correct? And what we are interested in knowing about the languages. If you want to know about the index of the various languages. So if you look for January 2022, okay, this year Python is a hero this year. It's a hero. Why? Because it has ranked today as the most widely used language in the world. Okay, that's great. Okay, but that's only the first time it has been ranked. So if you look at this, C today, last year, January 2021, till last year, C was the most widely used language, even till last year. This year it has seen 4% drop. Okay, that's not a big problem. Okay, that's not a big problem. Okay, but it's still having more than 12% of the market share.
And this slightly keeps on changing. Java, another language which is very popular, but Java has also seen a drop, where Python has seen some growth. But Python last year was the third language. Okay, that's okay. And this year it is the first language. C, last year it was first, Java was second. Okay. And Python was third last year. C++ was the fourth most popular language. Look at the market share. While C is 12%, look at the other language, SQL 1.0, Swift 1.1%, PHP, koi kehta R 1.25%. People talk about Go language, 1% almost. Look at the Ruby, not even 1% popular across the globe. And you can just go on to see the index. Now, what's more interesting is to see the graph for last several years. अगर हम लोग 20 साल की स्टोरी देखें, तो let's have a look at the story for last 20 years. Look at the Python. Look at where Python has been standing for last 20 years. It is only after 2018, जरा ध्यान से देखोगे, 2018 के बाद the story of Python is slightly different, very different. Look at this was the stage. 2 साल पहले, just before pandemic, okay, Python, what was the share? 5%. Last 2 years, it has seen some phenomenal rise. ये because of data science, machine learning, यहाँ Python का बहुत growth हुआ है. It is only during the last 2 years Python has grown to that extent. But जरा C की story देखें आप, look at that. It has been there for last 25 years. Last 25 years, it is either competing with Java or C. ये दोनों में ही competition. If you watch this very carefully, it's only Java and C for last 25 years. उनमें थोड़ा बहुत competition किसने दिया रहेगा? So that was C++. That was C++. That was C++. So C++, Java and C have been ruling the market for last 25 years. More than that. ये मैं 2002 से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 20 years की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. Python is a recent entrant. ये अभी अभी आया है Python इनके साथ कंपटीशन करने के लिए. It's the right age for Python. Python has been there with us from 1990s के समय से है. But I'm just sharing the index for you for these 2 years. But look at the C. It has been there always with us. Only 2018 में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है. But if you look at that, the only language which has ever competed with C was Java. And अभी Python ने थोड़ा सा पिप कर लिया है C को. If you look at this, Python ये है और C ये है. तो if you look at all these years, if I want to compare, ये Python और ये C देखो, ये आपका C देखो. It has always been much higher than Python for all these years. And right now, this is the only last year that this 2022 Python has surpassed C. But C will again come back. And why is it going to come back? I'll explain you in this particular topic. Why is this language C survived for such a long period of time? It's one of the oldest surviving language today. Assembly वगैरह देखे तो उनका शेयर बहुत कम है. Very few people understand it today. It's today's generation machine language. Very difficult for people to understand. आप में से शायद ही कोई assembly language में कोड करेगा. Serious कोड है. 2 नंबर एडिशन वगैरह कोड करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. Serious coding की बात कर रहा हूँ. Very few people will be doing that. So this index itself should be a good reason for us. देखो 2001 में Python का शेयर 20% था, अब वो half हो चुका है, 10% हो चुका है, but that's still great. Okay, but Python क्या था 2020 इस पहले 1.2% था 2001 में, और आज जाके वो it has now come to something like 13%, but C is not lagging behind, 12% पे ही है. So if somebody is telling you कि C is an outdated language, उनको जरा TYB का इंडेक्स दिखाइए and tell them C is there as long as अपने मशीन का आर्किटेक्चर जब तक चेंज नहीं होता ना, जब तक मशीन में प्रोसेसर वगैरह है, ये बेसिक आर्किटेक्चर हमारे पास है, till that time C is going to be there. It is a hidden language. If I tell you, you have the Python language that you work itself is created through C, that means जब तक Python रहेगा तब तक C रहेगा. That's how straightforward the story is. So C is a language which has survived several ups and downs, and even today it is one of the most widely used language. I'm just surprised why a lot of people are saying it's a dead language, it's an old language, and it's no point in learning the language. And if it's no point learning the language, why would it be even second or first number? The lowest rank C has got since last 30 years is rank number 2. Lowest rank क्या है उसका 2 है C का. Either it is first rank or second rank. Even today, if Python has crossed it, it's still second rank. कभी Java ने उसे cross किया था, तो Java used to be first rank. Yeah, competition used to be only in Java and C for last C, C++, Java, 3 languages for last 20 years. उस लीग में नया एंट्रेंट कौन है? तो Python है.
जिनका यूसेज 10% से ज्यादा है, ऐसे 3-4 ही लैंग्वेज आए हैं आज तक मार्केट में, C++, जावा एंड पाइथन. No other language का market share has gone beyond 10%. And C, I know I have seen C being 18%, 20% market share था C का. And till recent past, 2 साल पहले तक 18%, 16% market share. And it can come up because थोड़े बहुत और libraries बन जाए C के, it can again jump back and come back and displace Python. But irrespective, I'm not looking down on Python. Python is a good language, but then it has its own advantages. C has its own advantages. The point that I'm trying to make is, it is not an outdated language. Your investment in this particular technology will not go waste. Investment in terms of your efforts, investment in terms of your time that you're putting in, investment in terms of your money also that you're going to put in. The time, efforts, money will definitely not go waste. It is worthwhile spending. Popular hai. There are domains where you cannot do without C language. Today we are interacting with each other, correct? Apna is Zoom ka application running on Windows operating system. And believe me, the entire operating system, 90% of the code is written in C language. Rather, every operating system that we talk about today, Linux ho, koi bhi ho, sabka code C mein hi hai. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो और क्या बात करोगे आप? C and C++ kind of combination. Softwares that you use in the market today, all those media players, MS Office जैसा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो, ये C++ में ही लिखा गया है, पूरा सॉफ्टवेयर है. Just that we do not know. Just that अपने एकेडमिक्स में वेटेज कम ज्यादा होता है, इसका ये मतलब नहीं ये लैंग्वेज आउटडेटेड है. अगर आउटडेटेड होता, it would have been discontinued, people have forgot, thrown away that language. ऐसे कई सारे लैंग्वेज which have now become a story of past. When I started learning, Pascal was a very popular language. Fortran was a very popular language. आज नहीं कोई यूज कर रहा है. वेरी फ्यू पीपल ओल्ड प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए पास्कल और फोर्ट्रान पढ़ दे. नया कोई सीख नहीं रहा है ये लैंग्वेज. दोज आर लिटरली डेड. कोबोल, my first language that I learned was COBOL. We don't use it today. That's okay. Not that it is dead completely. आज भी COBOL के लिए मार्केट है, कोई लैंग्वेज ज्यादा नहीं है. There is a niche market. There are a lot of companies which have developed application COBOL and they're still using COBOL. तो वहां आपको अपॉर्चुनिटी है, बट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर लेस. अगर कोबोल का शेयर देखेंगे, इट कुड बी लाइक 0.5%, ऐसा कुछ तो रहेगा. बट लैंग्वेज कभी डेड नहीं होती है. वेरी रेयरली वी हैव सीन लैंग्वेज इज बिकमिंग डेड. डेड मीन्स जस्ट नो लॉन्गर यूज्ड. पुराने प्रोजेक्ट को तो मेंटेन करना ही होगा. एंड सी तो ऐसी लैंग्वेज है जहां नए प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन किए जा रहे हैं. सो इवन बिफोर वी बिगिन, आई वांट यू टू हैव दैट पर्टिकुलर फीलिंग कि you have made a right choice. You are not on the wrong path. And don't learn the language just because sir syllabus में है इसलिए पढ़ रहा हूँ. सिलेबस आपका तो वैसे भी आप क्लियर कर जाते हो. आप सो वेरी स्मार्ट, आपको पता है एग्जाम कैसे क्रैक करना है. लर्न दिस लैंग्वेज विद अनदर पर्सपेक्टिव. व्हाट्स द पर्सपेक्टिव? टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस इन प्रोग्रामिंग. वी कॉल सी एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. ऐसा क्यों? इफ यू कैन मास्टर सी लैंग्वेज, टेक माय वर्ड, all other languages are cakewalk. Because C is a language which will help you understand how machines work. That means you are not just going to write a code and see the result. You'll have understanding about what is happening internally. So if you understand how programs work internally, वो जब आपको समझ में आता है, tomorrow you're working in Java या Python, you know what is the cost of firing every instruction. Because उसके पीछे क्या चल रहा है. When I write something like this, what happens inside is what we know. And let me repeat once again, Python itself is implemented through C. मैं तो कहता हूँ Python is a sugar coated C. यानी अंदर हार्ट में तो C है, बट C को और सिंप्लीफाई करके दिया है, शुगर कोटिंग लगा के आपको एक Python सर्व किया गया है. जब जावा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो भी इंटरनली C को ही कॉल करता है. तो C is everywhere. You like it, you do not like it. It may not be in the forefront, समझ सामने नहीं रहेगा, but in the background, it's a language that is working. So it's here to stay for a long time. It's here to stay for a long time. It is just not going to disappear. So with that note, let's begin with our discussion for today. Any questions, anybody? You can just unmute yourself and ask her. It's always going to be a live session. हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग आपके लिए शेयर किया जाएगा. अगर आपको कुछ दोबारा सुनना है, you missed out something, कभी कभार क्या होता है, फोकस नहीं होता है. अभी अंकुर शायद देख रहा है एंड बीच में कहीं यहाँ वहाँ फोकस चला जाता है, तो he comes back, अरे मिस हो गया पिछले 5 मिनट याद नहीं. तो you can always watch the videos will always be shared for every lecture that we conduct. So let me also talk about the approach that we use. For every topic, आज का अगर introduction to C language है, for every topic
we have a technique. I normally go ahead with a presentation. I start with the presentation, discuss the topic with you. अभी तो introduction है, but once the presentation is done on a particular topic, then I give a demonstration. Code लिख के देखते हैं, demonstrate करते हैं, discuss कर लेते हैं. And after we give the demonstration, then I share the notes with you. Then how do we share those notes? We have an e-learning portal जिसके through हम लोग notes share करते हैं. So let me just give you a glimpse about our e-learning portal. So we have an e-learning portal through which we share the details. तो यहाँ अलग अलग courses है. You can just log in. Once you log in, जो भी आपका course रहेगा उसका आपको यहाँ you'll have to log in with your password and ID जो आपको दिया जाएगा once you take an admission. जो भी course रहेगा, समझो आपका course Python है, suppose ये नीचे सारे courses है एक नीचे, but Python है. तो यहाँ उसके notes रहेंगे, whatever topics that we discuss. Notes के बाद क्या रहेगा, तो यहाँ देखते हैं जो भी प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रोग्राम्स रहेंगे. प्रोग्राम्स के बाद उसके असाइनमेंट्स रहेंगे, उसका कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो वो भी रहेगा. एंड देन कोई स्पेशल टॉपिक्स, एडिशनल रीडिंग, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा फॉर ऑल द कोर्सेज. तो ये अगर ये है तो इफ यू लुक एट सी प्रोग्रामिंग, ये सी है, C++ है, सबका वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा. तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव फॉर एवरी कोर्स. और यहीं से आपके साथ सारे कोड्स भी शेयर किए जाएंगे. समझो कोई कोड है जो मुझे ये कोड डिस्कस किया हमने, तो ये कोड आपके साथ शेयर किया गया है, तो आपको घर जाके डाउनलोड करना है. आप घर में ही रहोगे, डाउनलोड करना है, एंड देन व्हाटएवर डिस्कशन दैट वी हैड, यू आर जस्ट सपोज्ड टू प्रैक्टिस इट आउट. समझो टॉपिक हुआ था तो इस टॉपिक के नोट्स भी रहेंगे, इस टॉपिक के नोट्स भी रहेंगे. तो नोट्स कहीं तो ऊपर रहेंगे. तो अगर ये टॉपिक हुआ था तो इस टॉपिक के नोट्स है. सो व्हाइल दैट वाज अ कोड बिटवीन ऑपरेटर्स, तो उसके नोट्स भी है, तो उसके नोट्स भी रहेंगे कि व्हाट इज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो नोट्स विल आल्सो बी देयर. बट ये नोट्स भले ही रहे, what I discuss in the classroom when I'm speaking to you, I'll always be discussing something that may not be there in the notes. So notes is something bare minimum जो आपको जानना जरूरी है, वो सब कुछ notes में है. But my strong advice, normally in every session I tell you, everybody should carry a fresh new notebook. यानी कोर्स शुरू हो रहा है, पहला दिन है, ठीक है, अभी नहीं है तो जल्दी से भागो, एक कोई नोटबुक पेन पेंसिल लेकर आइए. While we discuss, somebody asks some kind of question, तो मैं उसको explanation देता हूँ, and that clarifies the understanding. वो कॉन्सेप्ट एकदम सही समझ में आ जाता है. मगर याद रखो, एक चीज पे आपको भरोसा नहीं करना है, हमेशा दगा दी जाती है, एंड दैट्स योर मेमोरी. जब समय होता है ना कभी, अरे इट्स ऑन टिप ऑफ माय टंग, याद नहीं आ रहा, अरे मुझे मालूम है याद नहीं आ रहा. नहीं, बेस्ट थिंग इज टेक नोट्स. व्हेन यू टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, आज क्या डिस्कस किया, चलो आज हमने हिस्ट्री ऑफ सी देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखे, उसकी जरा की पॉइंट्स ही लिखोगे. डिटेल्स तो आई एम गोना शेयर इन द नोट्स. कुछ नया जो डिस्कशन के दौरान जो आ जाता है, की पॉइंट होता है जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाता है, वो आहा मोमेंट होता है, हाँ यार इस समझ में आया, दिस वाज गुड, नोट करके रखो. तो व्हेन यू लुक बैक एट योर नोट्स, वो पूरा सेशन याद आ जाता है, याद आ जाता है. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप नोट्स. और आपके खुद के नोट चाहिए. मैं कितने भी फैंटास्टिक नोट्स बनाऊं, उनका कोई फायदा नहीं है. आपके खुद का नोट्स रहेगा, दैट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर, प्रॉमिस में दैट यू आर गोना हैव नोटबुक्स विद यू ऑल. हर एक के पास अपना एक नोटबुक चाहिए, और नोटबुक में जो भी हम लोग सीखेंगे वो लिख के रखना चाहिए. अगर वो नहीं रहेगा, यू मे अटेंड सेशंस रेगुलरली, और परसों का क्या था, पिछले हफ्ते में क्या लिया, पिछले महीने में क्या लिया, याद नहीं आएगा. कितने सारी चीजें याद रखोगे. एवरी डे आई एम गोना बम्बार्ड यू विद दिस इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन, हर रोज बम्बार्डमेंट रहेगा. नया कुछ हर दिन सीखेंगे, तो उसका रिकॉर्ड तो रखना चाहिए ना, क्या सीखा हमने. अगर जाके रिवाइज भी करना है, मैं आपके साथ लिटरेचर भी शेयर करूंगा, बट कौन सा नोट देखना है, उसमें से क्या देखा पढ़ा है हमने, वो भी तो देखना जरूरी है. करेक्ट. सो एवरीबॉडी इज गोना मेंटेन देयर ओन नोट्स. डेट डालना है. ओके, आई मेंटेन नोट्स फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई रीड. तो मैं पढ़ता भी हूँ कुछ, तो मैं उसका नोट करके रखता हूँ. याद नहीं रहता यार, आज जो दिमाग में होता है ना, कल याद नहीं आता है. आइडिया भी रिकॉर्ड करके रखो. स्क्रिबल इट डाउन, जैसे जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखो, व्हाट यू अंडरस्टैंड राइट इट. नोट्स इज समथिंग दैट विल मेक योर लर्निंग परफेक्ट. तो आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, व्हाट यू अंडरस्टूड यू नोट इट डाउन. और कल अगर आपको वो डाउट आता है तो आप लिखा रहेगा, डाउट भी लिख के रखो, ताकि यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम एंड आई कैन क्लैरिफाई. व्हेन आई गिव द क्लैरिफिकेशन, आपको जो समझ में आया नोट करके रखो. नोट कीपिंग, आई एम गोना शेयर अ नोट विथ यू. उसका भी एक नोट शेयर करूंगा, एक मेल भेजूंगा मैं आपको, उसमें नोट कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, और अपने कोर्स का सिलेबस भी शेयर करूंगा. मैडम मे हैव शेयर द सिलेबस विथ यू, बट मैं दोबारा आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा, तो यू हैव एन आइडिया एज टू व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो मॉडल कैसा है, आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, I give a demonstration, I share the notes,
and share every program that we have discussed. जो भी प्रोग्राम ने डिस्कस किया वो दोबारा आपको दिखाया जाएगा. That's a basic idea. And assessment रहेगा. हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक पे एग्जाम रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगे जो आपको ट्राई आउट करने हैं, असाइनमेंट्स रहेंगे जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं. And once you do those things, you'll be super confident. My promise to you is, if you follow what I tell you during this next 90 hours of training, कम से कम 90 घंटे अपना ट्रेनिंग चलेगा. If you follow what I say, you will be confident to an extent that you'll have confidence that I can code. मैं खुद प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा. सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, कॉलेज के असाइनमेंट ही नहीं, आई कैन थिंक, आई कैन राइट माई कोड, आई कैन एक्सप्रेस माई ओन आइडियाज इन फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड प्लस आई नो व्हाट्स हैपनिंग एट द बैकग्राउंड. ये नहीं सर कॉलेज में कहा है प्रिंटफ लिखो तो ये हो जाता है. क्या होता है, क्यों होता है, कैसे लिखना है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है. तो द वे वी लर्न विल बी टोटली डिफरेंट देन व्हाट यू मे हैव एवर लर्न. Okay, C happens to be one of my favorite languages, and you'll see how we put across that language to you. Simple printf के फंक्शन पे 2 दिन बात करेंगे, इतना है उसके अंदर डिस्कस करने के लिए, और आपको पता चलेगा कितना पावरफुल फंक्शन है वो. You must have learned printf and scanf. I know एक एग्जांपल में खत्म करके आगे चले जा चुके रहेंगे. You don't even know, or people don't even discuss what's the power of that function. उसमें वर्किंग कितना समझ सकते हैं हम लोग. And once you have that understanding, believe me, all of the languages, including Python, Java, C++, all of them are dependent on C for carrying out low-level interaction. तो एक बार वो C का समझ में आ गया ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि Python में इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, Java में इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, C++ में कैसे करते हैं, because all of them depend upon C to do that work. तो जब हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन की बात आएगी, the only language that you have to fall back on is C language. भले आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते रहो, जावा में भी प्रोग्राम लिखोगे इनपुट आउटपुट का, it is going to call C methods. We call them as in Java native methods. उसको कॉल करता है and then it gets the work done. That's how C is so very relevant. It will make you a person who is not just writing a code, who also knows what's happening internally. ये कोड लिखने पर अंदर क्या होता है ये भी समझ में आएगा. And it's really very simple. Your understanding of the machine will improve. कंप्यूटर्स के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग will improve. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगा. यू विल बी अ कॉन्फिडेंट डेवलपर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स. बट उसके लिए सब कुछ करना जरूरी है. रेगुलर लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, नोट्स लिखना जरूरी है, असाइनमेंट सॉल्व करना जरूरी है. भले गलत आंसर आ जाए बट कोशिश करना जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, एग्जाम्पल जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया उनको ट्राई आउट करना जरूरी है. ये सब कुछ करोगे रेगुलरली, एवरीडे 1 hour after the session, that's more than enough for you to be super confident. And एक बार अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि I can code, then फिर कोई भी लैंग्वेज आ जाए फ्यूचर, you can definitely code. बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि I can code. कई बार we go through the exam, we get certificates, बट हमें पता होता है कि मुझे लॉजिक नहीं आता है, मेरा दिमाग नहीं चलता है, I do not know how to write that code. ये फायदा नहीं है. We can fool others, we can fool our parents, we can fool somebody else. You cannot fool yourself. So ask yourself, do you really know how to code? Do you understand how the machine works? Do you understand कि मैंने इंस्ट्रक्शन लिखने पर अंदर क्या हो रहा है, मेमोरी मैप क्या है? नहीं पता है तो अगर आप करियर करने वाले हो कंप्यूटिंग में, अगर आपको प्रोग्रामिंग में करियर करना है, तो दिस इज अ लैंग्वेज दैट यू बिगिन विथ if you really want to make a career in programming. It is not a language that I would suggest for somebody who just want to know what is programming. उनके लिए नहीं है. उनके लिए आप पाइथन पढ़ के आगे जाओ, समझ लो क्या है, आपको वैसे भी करियर नहीं करना है. बट those who are aspiring to be developers, अगर if you aspire, अगर आप सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में डेवलपर बनना है या बनने के बारे में मैं कोशिश करने वाला हूँ, then definitely have to be very very particular while you learn this language. It will make you a different developer. आपका एक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग अलग रहेगा अगर आप ये लैंग्वेज ढंग से पढ़ते हो तो. Okay, any questions before I go ahead? Any questions? Just unmute yourself and you can ask her. Okay, so hearing no questions, let's begin with today's session. So today what we are going to begin with introduction to C programming language. Simple से introduction लेंगे and we'll wind up with the introduction only. And ये I personally believe कोई भी टॉपिक हो, भले लैंग्वेज हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये बेसिक नहीं पता रहेगा ना, नो पॉइंट इन लर्निंग द लैंग्वेज. आई चैलेंज आप में से लोगों ने जिन्होंने प्रोग्राम लिखे भी रहेंगे, सी के प्रोग्राम रन भी किए रहेंगे, मेरा चैलेंज है आपसे 2-3 सेशन अटेंड करके देखो. मेरा चैलेंज है, आपको पता नहीं है हाउ टू कंपाइल अ कोड, आपको पता नहीं है हाउ टू रन अ कोड. चैलेंज है.
एंड आप ही क्या, I actually go on to make a statement. A lot of faculties don't know how to compile a code. You may say, sir, कि आप कुछ ज़्यादा ही बात किए जा रहे हो. But you'll understand once we learn this particular topic, what exactly is the process of developing a C program. वहीं से आपको पता चलेगा the depth that we go in clarifying simple सी चीजें, how to run a C program. That could be our third session. तीसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे how to run a C program. तो ये रन कैसे करना है, उसके लिए एक सेशन लगता है दोस्तों. कंप्लीट वन एंड हाफ आवर जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रन अ सी प्रोग्राम. एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, अगली बार तो मैकेनिकली रन कर देना है, उसमें कुछ नहीं है. बट क्या आपको पता है अंदर क्या होता है, कैसे रन होता है, व्हाट ऑल स्टेजेस डज इट गो थ्रू, डेवलप कैसे करते हैं सी प्रोग्राम को, रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं. दैट्स व्हाट क्लैरिटी ऑफ थॉट वी नीड टू हैव. स्टेप्स हमें पता ही नहीं होता है, हम लोग तो सिर्फ एक कमांड लिख देते, लगता है कि उतना एक कमांड से जादू हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो मैजिक. प्रोग्रामिंग में तो बिल्कुल ही कोई मैजिक होता नहीं है. There is reasoning, there is something that you know and something that you do not know. So watch till the time we'll discuss how to run a C program. That itself will give you a good understanding कि क्या है रे ये बाबा, स्टोरी क्या है. And this is true for all the languages. तो ये आपको पता होना चाहिए how programs really run. Okay. So basic से हम लोग शुरू करेंगे एकदम ABCD. Assume that you are all zero in programming, कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, वहीं से शुरू करेंगे. बट कुछ भी मालूम नहीं इसका मतलब नहीं कि आप चुप बैठोगे. जहां कहीं आपको कोई क्वेरी रहेगी, यू शुड ओपन अप, यू शुड आस्क द क्वेश्चन एंड देन वी कैन गो अहेड. तो यू शुड हैव टू ओपन अप, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू शुड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. जितना आप पूछोगे उतना आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा. एंड हु आस्क क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सुन रहा है, जो इन्वॉल्व है, वही क्वेश्चन पूछ सकता है. समझो अभी अपने क्लास में अमन है, अमन का ध्यान ही नहीं है लेक्चर के तरफ. समझो एज्यूम अमन मे बी वेरी सिंसियर, आई डू नॉट नो, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट समझो अमन है, अमन का ध्यान नहीं, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा ना, व्हाट क्वेश्चन विल आस्क. और अजीत है, वो ध्यान से सुन रहा है, तो डेफिनेटली वही एक बंदा है जिसको कोई डाउट आएगा, वही डाउट क्लैरिफाई करेगा. जब उसका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा, ही इज एट पीस, ही इज कॉन्फिडेंट, उसे मालूम है कि ये कैसे काम कर रहा है. कोई मिसकॉन्सेप्शन लेके आगे जाना नहीं है. एंड ये क्लास है अपना, यानी व्हेन यू आर लर्निंग, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव ऑल द लिबर्टी टू फेल. यानी आशीष आस्क क्वेश्चन, इट्स अ सिली क्वेश्चन, let people laugh at it, we don't mind, but Ashish has a doubt, so that needs to be addressed to. And my promise to you is, in this entire course, whatever question you ask related to programming, the language that you are learning, that will be answered there and there itself. 99.9% of the time I'll answer your question there and there itself. आपका जो भी डाउट है वही के वही क्लैरिफाई करूंगा, आगे नहीं बढ़ेंगे. हाँ, अनलेस कि वो अगले टॉपिक में आने वाला रहेगा तो मैं कहूंगा वेट करो, अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने ही वाले. अनलेस दैट इज नॉट द केस, अगर वो वहां डिस्कस करना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो वही के वही मैं डाउट क्लियर करूंगा. देयर इज नथिंग लाइक देखेंगे सुनेंगे, कुछ नहीं. डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड. हाँ, बट दैट शुड रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. इट शुड नॉट बी सम पर्सनल क्वेश्चन. सर आपके पहले गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? दैट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोग्रामिंग. सर वेज है नॉन वेज खाते हो? ना बाबा, उससे इस प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं है. एनीथिंग दैट इज अ रिलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, वो वही के वही आंसर किया जाएगा. Second, do not hesitate while you ask a question. Say we have Monica over here, and suppose Monica has difficulty speaking English. Doesn't matter. I don't have difficulty understanding Hindi or Marathi. You can ask question in whichever language you want. Okay, I would recommend जितना भी आपका अच्छा बुरा इंग्लिश है उसमें पूछो. But still, if you cannot express yourself, ask question in Marathi, Hindi, English, Gujarati. I understand all the 4 languages. आप चारों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो. I would rather explain most of the time in English. It's a mix of English, Hindi, and सबको मराठी आता है तो someday I may mix up Marathi as well. I am a proud Maharashtrian, but this is a technical subject. Let's not talk about languages. Let's focus on the content. And पूरा literature language का English में है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे ये सेशन English में लिया जाए. कोशिश करेंगे. अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो I'll switch over to other language. I don't have any hesitation. आपको पूरी लिबर्टी है, आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउएवर सिली यू मे फाइंड, आस्क. मन में डाउट रखना नहीं है. माय प्रॉमिस टू इज एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. आपको उसका जस्टिफिकेशन मिलेगा, वही के वही मिलेगा. एंड बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आप में से कोई एक ऐसा है, चेतन है, उसने कुछ ऐसा सोचा है जो मैंने 25 सालों में सोचा नहीं है. देन आई मे टेक अ चांस की, बट ऐसा हार्डली आपको मौका नहीं आएगा. आई नो व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू कैन आस्क, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सी लैंग्वेज since 1996, even before I started with Impetus. तो I know probably आप क्या सोचोगे
या आपने क्वेश्चन शुरू करते ही मुझे पता रहेगा कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा. All your questions will be answered there and there itself. That's a promise from my side. इस प्रोग्रामिंग के दौरान हमें कोई सॉफ्टवेयर लगेंगे, दैट आई विल शेयर विद यू. आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है. इंस्टॉलेशन के नोट्स रहेंगे, वीडियो रहेगा, आपको फॉलो करना है. आपको अपने मशीन को सेटअप करना है. मुझे चाहिए कि सबकी मशीन एक जैसी सेटअप हो, ताकि मैं जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ वो आप भी आपके घर में कर सके. तो सबकी मशीन एक जैसी सेटअप चाहिए. एवरीबडी शुड हैव अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप. ये वीडियोस ऐसे नहीं है, लेक्चर ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस देख लिया आपको समझ में आ गया. अनलेस यू डू नॉट राइट द कोड ऑन योर ओन. जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप खुद करके देखोगे नहीं, तब तक लैंग्वेज आने वाला नहीं है. नोबडी एवर इन द वर्ल्ड हैज बिकम अ प्रोग्रामर बाय वाचिंग वीडियोस या अटेंडिंग लेक्चर. उससे कोई प्रोग्रामर बनता नहीं है. यू कैन बी अ प्रोग्रामर ओनली व्हेन यू राइट कोड. तो कोडिंग करना जरूरी है फॉर यू टू improve your confidence, to see what problems you come across, and when you start coming across problems, उस problem को आप overcome कर लेते हो. That's how you develop to be a programmer. तो everybody should have a computer, laptop, desktop, कुछ तो चाहिए. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो इंटरनेट एक्सेस रहेगा तो चाहिए. मैं आपको ऑनलाइन कंपाइल्स दिखाऊंगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग कोडिंग, सब कुछ है. इंटरनेट तो चाहिए कम से कम. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर दैट मींस यू हैव एन इंटरनेट. डोंट टेल मी. बट मोबाइल पे कोडिंग होने वाला नहीं है. सो एवरीबडी शुड हैव अ कंप्यूटर. नहीं रहेगा दोस्त से ले लो, 2 घंटे शाम को शेयर करो. कोई घर में आपका बड़ा भाई छोटा भाई किसी के पास रहेगा तो 2 घंटे के लिए शेयर करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो. दैट्स गुड इनफ. टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर आई विल शेयर विथ यू. तो नोट्स मैं ही शेयर करूंगा, लिटरेचर मैं ही शेयर करूंगा, सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा. एंड आपको सिर्फ फॉलो करना है. जस्ट फॉलो मी. जब भी डाउट रहेगा आस्क क्वेश्चंस. आवर जर्नी विल बी वेरी एंजॉयबल. You will also be super confident at the end of this course. Okay, with all that initial chit chat, let's begin with our topic. That's introduction to C language. Introduction, and it's an introduction. Now, while we start with introduction, the first question is, you all are here to learn programming. So my question to you is, what is a programming language? जो आप पढ़ने आए हो यहाँ, तो है क्या programming language? Come on, unmute yourself and answer. Anybody? देखिए, जब आपको मौका मिलता है आंसर करने का, कितना भी सही हो, होल्ड कितना भी आपका आंसर सही और गलत हो, से प्राची मेक्स एन अटेम्प्ट टुडे एंड आई लाफ एट प्राची. आई विल नेवर लाफ. दोस्तों ने दे लाफ एट. ठीक है, बट दैट आई गिव द करेक्ट आंसर. विल प्राची इन हर लाइफ फॉरगेट कि मैंने आंसर दिया था, लोग हंसे थे मुझ पे, बट उस स्टोरी के साथ साथ आंसर क्या था ये भी तो याद रहेगा. एक सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो, प्राची आंसर्स द क्वेश्चन and she is damn एकदम परफेक्ट आंसर दिया. आई अप्रिशिएट प्राची, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर दिया. ये भी अगर सिनारियो है, ये बेस्ट सिनारियो, एक वर्स्ट सिनारियो दिखा है. दोनों केसेस में क्या दोनों केसेस आप भूलने वाले हैं क्या? पहले दिन मैंने आंसर दिया था एंड सर अप्रिशिएटेड मी, वो भी नहीं भूलोगे. मैंने आंसर दिया था लोग मुझ पे हंसे, ये भी नहीं भूलोगे. बट इन बोथ द केसेस एक चीज कॉमन है, सही आंसर क्या था वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा. लुक एट द उसके पीछे का फायदा क्या है. आंसर सही आए गलत आए, यू विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वाज द राइट आंसर आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन. और अगर आपने दिया है तो मैंने अप्रिशिएट किया तो भी याद रहेगा, और मैंने आपको गुस्सा किया या लोग आपके हंसे और फिर हमने बाद में सही आंसर क्या है डिस्कस किया तो भी याद रहेगा. यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. वो सेशन ही भूलोगे नहीं. तो इन्वॉल्वमेंट कैसे चाहिए, जहां कहीं अपॉर्चुनिटी. नाउ आकाश मेड एन अटेम्प्ट, ही इमीडिएटली मेड एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन. गुड. बिकॉज फिर देन आई विल से आकाश नहीं यार, दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर यार, दिस इज अ वेरी गुड आंसर. याद रहेगा. तो लर्निंग है ना, हमेशा ऐसे रट के डेफिनेशंस बाय हार्ट करके. आई एम टोटली अगेंस्ट डेफिनेशंस एंड थिंग्स. मुझे मायने ही नहीं रखता है कोई डेफिनेशन. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बाय हार्ट करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है. और समझने के लिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ क्या है? व्हेन यू आंसर माय द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड एंड व्हेन यू हैव योर क्वेरीज गेट इट क्लैरिफाइड फ्रॉम. मैं बैठा हूं यहाँ आपके सारी दुनिया भर के क्वेरीज क्लैरिफाई करने के लिए मैं बैठा हूं. बट जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट मेमोरी, यानी ऐसे मेमोरीज क्रिएट करने के लिए. बी इन्वॉल्व्ड, आस्क क्वेश्चंस, क्वेरीज, आंसर क्वेश्चंस दैट आई आस्क यू, शो द इन्वॉल्वमेंट. ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो ही सेशंस इंटरेक्टिव होते हैं. तो फिर नहीं तो मेरे वीडियोस ही वॉच करो लास्ट सेशन की. अगर सिर्फ पैसिवली देखना है, हाँ सर कैसे बढ़ा रहे टॉपिक सुनना है, तो आई कैन जस्ट प्ले द वीडियोस एवरी डे विद फॉर यू. कल का एक वीडियो, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, आई हैव रिकॉर्डिंग्स फॉर ऑल द प्रीवियस बैचेस एज वेल. तो मैं रिकॉर्डिंग ही प्ले कर लेता आपके साथ ना. दैट विल नॉट बी एन इंटरेक्टिव सेशन. जहां श्वेता के मन में अभी जो डाउट आया है वो अभी क्लैरिफाई करना भी जरूरी है. एंड दैट अपॉर्चुनिटी यू हैव इट ओवर हियर.
सो टेक इट एज अन अपॉर्च्युनिटी. डू नॉट हेजिटेट. अरे माझी इंग्लिश व्यवस्थित नाहीये, आपल्याला इंग्लिशचा सेशनच नाही. वी आर नॉट हिअर टू लर्न इंग्लिश, वी आर हिअर टू लर्न सी लँग्वेज. ओके, इंग्लिश शुड बी गुड, but that's not a mandatory thing. It is a mandatory thing, but not very much, at least while you're learning. You have still enough time to master the English language. उसके लिए आप किसी और के पास जाइए, कोई और आपको इंग्लिश का ट्रेनिंग दे देगा. बट यहाँ जब सी के लेक्चर के लिए आए हो तो सी समझना जरूरी है, एंड वो परफेक्टली समझना जरूरी है. तो जहां कहीं हो, आप क्लासरूम में हो, यहाँ हो, जहां कहीं कहीं आपको क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है, ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर. सही आए गलत आए. देखो, और एक तीसरा सिनेरियो. एक था श्वेता आंसर, एवरीबडी लाफ्ड, शी स्टिल रिमेंबर्स. सबने मेरी हंसी की थी, मैंने आंसर ऐसा दिया था, एक्चुअली आंसर ये था, याद रहा. सेकंड, आई अप्रिशिएट, श्वेता से, अरे मैंने आंसर देकर दिया था, सर ने अप्रिशिएट किया, ये आंसर दिया था, ये क्वेश्चन था, जिंदगी भर याद रहेगा. तीसरा सिनेरियो देखते हैं. तीसरा सिनेरियो कि यू गो हेड, क्या दिमाग में चल रहा था मेरे, चलो, समटाइम्स इट सो हैपेंस कि आपके दिमाग में कुछ चालू है, एंड देन यू टॉक समथिंग, वो कोई तो एक दिमाग में से सिचुएशन निकल जाता है. एज इन व्हेन इट कम्स. लाइव सेशन का यही मजा होता है. ये रिकॉर्डिंग नहीं है कि ये चलो कट कर लिया, दूसरा पेस्ट कर लिया, दैट डजंट हैपन. ओके, फ्लो, थॉट का फ्लो कभी कभार, वो श्वेता का नाम देख ढूंढते समय निकल गया दिमाग में से, क्या बात करनी थी. मैं साक्षी का नाम लेके कुछ बात करने वाला था. क्या कहने वाला था मैं, अबाउट लर्निंग, हाउ इट इम्प्रूव्स. चलो दिमाग में आ जाए तो आई जस्ट टेल यू. ओके, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट, तीसरा सिनेरियो दिमाग में था, बट ऐसे होता है, याद नहीं आता है. या कोई बाहर करके स्क्रिप्ट लेके तो बैठा नहीं हूँ सामने, ऐसा स्क्रिप्ट रखा है, आई एम रीडिंग दैट स्क्रिप्ट, ऐसा तो होता नहीं है. ओके, दैट्स अ फन ऑफ लर्निंग लाइफ. हाँ, तो इसमें ये भी होता है कि आज श्वेता ने कोई क्वेश्चन पूछा, वो मेरे स्क्रिप्ट में था ही नहीं, स्क्रिप्ट में मैंने सोचा भी नहीं था, बट दैट मेक्स मी थिंक एंड आई डिस्कस अ टॉपिक दैट्स टोटली रिलेटेड, बट नॉर्मल इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन वी डोंट टेक इट. कुछ एडिशनल लर्निंग हो जाता है. तो एडवांटेज बहुत है क्वेश्चन पूछने के. हाँ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि श्वेता, साक्षी आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड शी एवरी टाइम कीप्स ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन. एंड हमारे पास शिव में जिंदगी भर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा. तो साक्षी भले अच्छे क्वेश्चन पूछती है, हंसती है, हम लोग हंसते हैं उस पर, क्या है, साक्षी सबको याद रहेगी. इवन आई विल रिमेंबर साक्षी इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर. शिवम ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इंटरेक्शन नहीं हुआ, याद तो रहेगा कि हमारे टीम में कोई शिवम नाम का बंदा था भी या नहीं था, याद भी नहीं रहेगा. तो इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इफ यू वांट योर टू बी आइडेंटिफाइड इन द टीम, इंटरेक्शन जरूरी है. बिना इंटरेक्शन को कितने भी आप अच्छे हो, किसी को याद नहीं रहेंगे. यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. हाँ, क्या दिमाग में चल रहा था, समझो रोहित का एग्जांपल लेते. रोहित आस्क्स अ क्वेश्चन एंड इट वाज रिलेवेंट, इररिलेवेंट, जो भी रहेगा क्वेश्चन, बट देन व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, इट गिव्स मी एज अ ट्रेनर इनसाइट कि आप क्या सोच रहे हो. तो अगर मैं आपको अच्छी तरह से समझ सकूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, विल आई नॉट बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू आउट. मगर आप चुप्पी मार के बैठे हो, रोहित बात ही नहीं करता है, तो यहाँ आपका चेहरा भी दिखाई नहीं देता है. मोस्ट ऑफ यू कीप द वीडियोज ऑफ, तो आई कैन नॉट इवन सी योर फेस. तो हाउ इन द वर्ल्ड आई एम गोना अंडरस्टैंड कि आपको दिक्कत क्या है. तो आपको कुछ, चलो रोहित ना इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था. समटाइम्स पीपल से, सर आप बहुत फास्ट बोल जाते हो इंग्लिश, तो हमें नहीं समझ में आता है. बट अगर मैं बात ही नहीं की, तो आपका चेहरा भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. तो हाउ डू आई नो कि आई नीड टू चेंज. कि कोई टॉपिक समझा रहा था, थोड़ा सा मुश्किल था टॉपिक, आपको नहीं समझ में आया, आपने मुंह नहीं खोला, आपने बताया नहीं. हाउ इन द वर्ल्ड आई एम गोना रिपीट दैट टॉपिक व्हेन आई डू नॉट नो. तो व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, तीसरा एडवांटेज जो बात कर रहा था, श्वेता का एग्जांपल लेने वाला था, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे सोच रहे हो, फिर आपकी सोच में कहाँ करेक्शंस करना है. इट हेल्प्स मी एज अ ट्रेनर एज वेल. एंड व्हेन आई एड्रेसेस टू योर, आपका असली में जो प्रॉब्लम है उसको अगर मैं एड्रेस करूं, तो यू विल बी बेनिफिटेड एट द एंड ऑफ द डे, इजंट इट. तो फॉर मी टू अंडरस्टैंड यू, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन. For you to understand what I'm teaching, you need to ask question. So one who asks questions and answer question is the only one who has some definite possibility. क्या, he is definitely going to be successful in every sphere of life. Not just programming की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह बात कर रहा हूँ. कोई अलग टॉपिक की मीटिंग में भी हो, अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, क्लैरिफिकेशन मांगते हो, आपने जो समझा है वो सही है कि नहीं कंफर्म कर लेते हो, बेस्ट ना. तो आस्किंग क्वेश्चंस, बीइंग इन्वॉल्व्ड, टेकिंग इट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट. से आज साक्षी ने कोई आंसर दिया एंड आई अंडरस्टूड साक्षी ने एकदम गलत ही सोचा है, यानी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस लाइन में उसका थॉट प्रोसेस नहीं है. देन आई कैन करेक्ट साक्षी, साक्षी ऐसा नहीं है बाबा, देखो ये मैं समझा रहा था, ऐसे सोचो, आई कैन हेल्प यू आउट बेटर. आस्क क्वेश्चंस. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कम ऑन.
Sir, it is set of instructions Hmm? which we use to communicate with the computer and by which it performs specific tasks. No, very good, very good. Now, how can our answer be even perfect than this? Okay, I was talking about a scenario. Somebody can give a very perfect answer. So here is someone who has given a perfect. Who was that? Monica? Mukta Joshi. Mukta Joshi. So it was Mukta. Look at that. अभी याद रहेगा पहले दिन में मुक्ता ने सही आंसर दिया था. And Mukta will also remember I gave a perfect answer. But then मैंने इतना perfect answer दिया. Sir said that and still sir went on to add something to that answer. वो भी याद रहेगा. So take it as an opportunity. So let's understand what is a programming language. Mukta says it is a set of instructions. Perfect. It is a set of instructions. And with which we communicate with the machine. Very correct. It is not a set of instructions with which I am going to communicate with Khushbu. मुझे खुशबू से बात करनी है तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ. English is a language that Khushbu and I both understand. So it's a language which is a natural language. English, Hindi, Marathi, Tamil, these are natural languages. We as humans use natural language to communicate. But ये human to human interaction के लिए natural language का इस्तेमाल कर सकते हैं. Machine के साथ interact करना है. Henceforth in the course, जब भी मैं machine कहूँ, I mean the computer. तो जब machine के साथ आपको interact करना है, ओके और कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर नहीं जिसमें कहीं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर कोई चिप रहेगा वो कंप्यूटर यानी कार भी कंप्यूटर हमारे लिए बिकॉज उसमें भी माइक्रो कंट्रोल वगैरह है जिसमें डिजिटल हार्ट बीट है ना वो मेरा मशीन तो उस मशीन के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो यू आर नॉट गोना टेल टू योर मशीन टॉक टू योर मशीन इन हिंदी मराठी इंग्लिश नो दैट्स नॉट अ लैंग्वेज दैट द मशीन अंडरस्टैंड्स तो वी नीड टू टॉक टू द मशीन इन द फॉर्मेट द मशीन अंडरस्टैंड तो हाउ डू यू टॉक by giving instructions. So Mukta said it is set of instructions. What is a program? It's a set of instructions. What are instructions? It's a command that we are given to the machine कि मेरे लिए काम करके दे दो to get some work done. What she was saying. So to get some work done, we are going to interact with the machine. So we are going to give some commands to the machine. Now listen. Now when I am speaking to you, I am currently using English as a language. So English as a language has some words. तो जो मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ इफ आई वांट टू से आशीष कहाँ हो सॉरी आशीष आर यू लिसनिंग आशीष आर यू लिसनिंग yes sir yes sir he is listening okay the point is I formed a sentence मेरा सेंटेंस था आशीष आर यू listening आशीष आर यू it doesn't make sense so to form a sentence there is a grammar listen to form a sentence there is a grammar I am using some words which are from English मैं English या इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं करूंगा अभी कर रहा हूँ बट इफ आई एम स्पीकिंग आई नीड टू यूज वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग हर एक वर्ड का एक मतलब है सो एवरी लैंग्वेज लेट इट बी इंग्लिश मराठी तमिल कन्नड़ा विच एवर लैंग्वेज इट इज एवरी लैंग्वेज हैज सेट ऑफ वर्ड्स एवरी वर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इफ आई से खुशबू स्टैंड अप so that word stand up has a meaning I say Khushbu sit down that sit down has a meaning every word has a meaning so likewise in programming language also there will be words they will also have meanings there we say they are commands they are keywords of that language they form the vocabulary of the language मराठी सांगायचं तर प्रत्येक भाषेचा आपला एक शब्द संग्रह आहे every language has its own set of words so if I have to speak with somebody in English I should be using words which are present in English if I have to speak somebody in Marathi मला मराठीत असलेल्या शब्दांचा वापर करायला पाहिजे मराठीत बोलताना तर every language will have its own set of words so likewise programming languages will also have their own set of words we call them as keywords every language has a grammar हिंदी में सेंटेंस खत्म करोगे तो डंडा डालना है मराठी में फुल स्टॉप डालना है there is a grammar how to construct a sentence तो प्रोग्रामिंग में भी when you write some instructions to get some work done from the machine it also has its own syntax तो जो हमारे लिए नेचुरल लैंग्वेज में ग्रामर है इन प्रोग्रामिंग इट इज सिंटैक्स नेचुरल लैंग्वेज में हमारा जो वोकैबुलरी है वर्ड्स की वोकैबुलरी है हियर देयर आर कमांड्स so every language has set of commands we call them as reserved words that word cannot be used for some other purpose that already has a meaning that command already has a meaning if I say delete that command delete has a meaning I can use it only for the purpose for which it has been designed so every language has its own set of words those words have meaning and every language programming language will have its own grammar so what are we going to do with that we're going to use those set of instructions commands so instruction कैसे create करेंगे by writing those commands in a particular syntax. Syntax is a grammar of programming language. Syntax क्या है? Programming language का grammar है. और जैसे अपने languages में words है, वैसे programming language में commands है. So and those commands are called as keywords. They cannot be used for any other purpose. They already have a meaning in that language. So you will be using those keywords and the syntax to form instructions,
एंड वो इंस्ट्रक्शन आप मशीन को फायर करोगे, देन द मशीन अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन एंड देन द मशीन विल गेट सम वर्क डन. तो यू हैव सम ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड कि मुझे ये काम करवाना है मशीन से. तो यू विल बी टॉकिंग टू द मशीन इन द फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड, करेक्ट. बट टू टॉक टू द मशीन इन द फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड, देयर आर सम रूल्स, ग्रामर, देयर आर सम कमांड्स, कीवर्ड्स. तो उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके यू विल फॉर्म सम इंस्ट्रक्शंस कीपिंग इन माइंड द सिंटैक्स, and then you will fire that instruction to the machine. Then the machine will understand what is to be done. So what is a programming language? It is set of keywords and grammar. Grammar matlab syntax that allows the programmer to write instructions that a computer can execute. So is programming language क्या है? Language is what Mukta said. What is a program का definition दिया. Look, Mukta, I am correcting you. देखो आपने आंसर दिया इसलिए मैं आपको करेक्ट कर पा रहा हूँ. मुक्ता ने क्या कहा? Sir, it is set of instructions. That's what you said, Mukta, isn't it? Yes, sir. So set of instruction is a definition of a program. अपना क्वेश्चन क्या था? What is a programming language? तो you have to listen to the question very carefully. आपने जो आंसर दिया वो आंसर था किस बात का? What is a program? मेरा क्वेश्चन what is a program नहीं था, मेरा क्वेश्चन था what is a programming language. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड ग्रामर. इन कीवर्ड और ग्रामर का इस्तेमाल करके विल राइट द इंस्ट्रक्शंस, एंड इंस्ट्रक्शन जब लिखोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल देन क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आई कैन फायर टू द कंप्यूटर. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स and the grammar, the syntax, which gives you an opportunity to write instructions, and those instructions can be executed by your computer. A programming language is an artificial language. ये natural language नहीं, जैसे English, Hindi, Marathi वैसा नहीं है. With English, Hindi, Marathi, we are communicating with each other. But with these computer languages that we are going to learn, we are going to interact with the computer. We are going to get the work done from this machine. And when I use the word machine, I said, you need to understand my machine is a computer. Right? So programming language is what? It defines the vocabulary, the number of commands that are there, and set of grammatical rules for instructing to the computer to perform a specific task. यानी language क्या देता है आपको? Vocabulary, keywords, commands, rules, and using that words and the rules, you're going to create some instructions, and using those instructions, you're going to get some work done from the machine. So that's a programming language. And today, if you look in the market, अभी हमने लिस्ट देखा था, TOIB के इंडेक्स में देखा था. I'm just going to share that link also with you. कितने सारे लैंग्वेजेस है, कितने सारे लैंग्वेज के नाम आपने सुने भी नहीं रहेंगे. ओके, लोगो, पायलट, प्रोलॉग, APL, लिस्प, डेफिनेटली मॉडुला, इनके नाम तो आपने सुने ही नहीं रहेंगे. ADA, यहाँ है C, पास्कल, अल्गोल, फोर्ट्रैन, वो शायद आपने सुने रहेंगे. There are so many other languages which are there. Okay, and each language has its own area of application. तो अगर आपको आज हम लोग C पढ़ने वाले, is it like every program जो भी कोई टास्क करना है मैं C में कर पाऊंगा? कर पाएंगे, but that may not be the best way to go about. यानी मुझे कहीं से भी कहीं जाना है, I want to travel. तो can I always travel using my bike? Almost always. But if I have to go from here to Sri Lanka, can I travel using bike? Not possible. There is a sea in between, so I'll have to use a ship or a boat or something like that, or an aeroplane, and then fly over. Travel तो करना है, but one solution for all problems will never be the case. That will never. So every language has its own area of application. ऐसा काम है तो ये लैंग्वेज यूज करो, डेटा प्रोसेसिंग करना तो कोबोल यूज करो या सीक्वेल यूज करो, मशीन इंटरेक्शन करना है तो सी यूज करो. हर एक लैंग्वेज का अपना अपना स्टिमुलेशन करना है तो मैटलैब यूज करो. हर एक लैंग्वेज का, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आजकल जो पॉपुलर है पाइथन के साथ आर लैंग्वेज यूज करो. A to Z सारे लैंग्वेज है, ABCDEFG सारे है तो आर यूज करो. लाइकवाइज D हैज इट्स ओन एरिया ऑफ एप्लीकेशन. हर एक अपने लैंग्वेज का हर एक अपना एक एरिया ऑफ एप्लीकेशन, किस काम के लिए दैट लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड. ये नहीं कि उससे नहीं कर सकते हैं, बेस्ट सूटेड नहीं रहेगा शायद. इट मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन. सो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस दैट आर देयर इन द मार्केट. One of the earliest language that was designed was a language called as Fortran. Does anybody know about language Fortran? What does Fortran stand for? Any idea? What does Fortran stand for? Fortran. Okay. Now, why am I talking about languages? अभी यहाँ 200 से ऊपर लैंग्वेजेस आज मार्केट में है, तो क्या मैं आपको सारे लैंग्वेजेस के बारे में बात करूंगा? बिल्कुल नहीं. In today's session, I'm touching upon the languages that had some influence on development of C language. C से जो related है, कुछ तो influence है C के creation में, या how it C works, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ. So I'm talking about a language called as Fortran, which came into market even before C.
सी आने के पहले आया. It was in 1954 this language was designed. Even before 1954 the story started. What happened was the biggest development in field of computing कब हुआ था? It was during the Second World War. Excuse me. Computers were there in the market even before the Second World War. But during the Second World War, one of the biggest invention happened other than the nuclear bomb. Anybody knows about the biggest invention in during the Second World War? Other than the nuclear bomb, which has changed the world? Any guess? करो guess. Engineers हो आप लोग? How many engineers, aspiring engineers, raise your hand. Engineers कितने हो गए? Raise your hand. रूम में नहीं हैंड करना है रेस, जूम में करना है. यहाँ रिएक्शन है नीचे, उस रिएक्शन पे क्लिक करके आपको हाथ रेस करना है. Okay, there are very few engineers. Okay, almost 40% engineers. Okay. You're non-engineer. I'm also non-engineer, doesn't really matter. Engineering is not about a degree. Engineering is a mindset. So I'm an engineer by mindset. So we have to be engineer by mindset. वो degree है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. A lot of people, most of the people are engineers only by degree, not by the mindset. Okay. तो mindset engineering चाहिए, providing solution वाला चाहिए. So any guess? Anyone wants to guess? What is the biggest invention in the? Sir, laser. No, bigger than that. लेजर के एप्लीकेशन तो बाद में आए. लेजर वाज नॉट सो वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर. ओके. Radar. रडार वाज देयर बिफोर आल्सो. रडार था. रडार से भी जिसका इंपैक्ट दुनिया पे ज्यादा हुआ है. ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट. इट वाज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. Okay, the biggest invention that happened in the field of electronics was invention of transistors. Okay, I hope all of you have heard of transistors. Yes or no? Hi, Anna. Yes, sir. Okay, so I heard of transistors. So before transistors, when the computers were designed, they were very big. They used to use something called as vacuum tubes. I'll be sharing a link about that. वैक्यूम ट्यूब्स. और ये वैक्यूम ट्यूब इतने बड़े हुआ करते थे, एक एक मशीन में 18-18, 20-20 हजार वैक्यूम ट्यूब्स. द मशीन इज टू ऑक्यूपाई एंटायर रूम. इतने बड़ी रूम. तो अगर बड़ी से रूम में एक मशीन फिट हो जाता है और वो बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है और वो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो ऑफिस में तो ऐसी मशीन रखोगे नहीं आप. बट विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, वन स्मॉल ट्रांजिस्टर नाउ रिप्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. सो द मशीन साइज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, एंड यू मस्ट हैव सीन द ट्रांजिस्टर हाउ स्मॉल दे आर. They can be so small that you have to use a microscope to view it today. इतने छोटे भी हो सकते हैं आज के ट्रांजिस्टर्स. नॉर्मली आप हाथ में पकड़ सकते हो, but they can be so small that you need a microscope to view the transistor today. आज जो इतना लेवल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जा चुके हैं. But one small transistor, few millimeters in size, could replace hundreds of vacuum tubes. So with that, the machine size reduced significantly. मशीन का साइज कम हो गया. इतना ही नहीं, मशीन का साइज कम होने से मशीन का पावर भी बढ़ गया, because transistors were now working faster. You could use machines for more complex operations. It could fit on a desktop. So desktop का concept आया after the Second World War with the invention in the field of electronics. Now अगर desktop पे fit होना मशीन आ गया, छोटा मशीन आ गया, तो businesses में use करना शुरू किया. Business में use करना है तो calculation वगैरह चाहिए, तो support चाहिए. तो अगर मशीन से मुझे कुछ काम करवाना है तो instruction देना जरूरी है. तो they started designing programming languages which is easy to talk to the machine. So one of the first language that was designed was a language called as Fortran. Fortran, as the name says, Fortran, it stands for formula translation. यानी early days, ये जो कंप्यूटर है ना, आज कंप्यूटर हर कोई यूज करता है. Right from the farmer to an engineer to a scientist, everybody uses. But those days, it was only meant for engineers and scientists. Nobody else was using machines, computers. So formula translation, Fortran, it was one of the first language that was designed. The good thing about this language was, this was not the good thing. It was used by scientific engineering communities. Computers were very costly those days. Common man के तो afford करने के बाहर का था, ये machine नहीं कर सकते थे afford. But they were used for scientific engineering communities for calculations and other things. It was the first high-level language
एनी आइडिया? हाई लेवल, बहुत हाई लेवल है, समझ में नहीं आता है. एनी आइडिया व्हाट इज हाई लेवल? एनीबॉडी वांट्स टू मेक अटेम्प्ट? हाई लेवल, इट वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज. यानी इसके पहले भी लैंग्वेजेस थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट Fortran because it was the first high level language. Any idea as to what is high level language? Come on, make an attempt. क्या रहेगा? करो guess. Globally accepted. That doesn't say it's high level. Okay. Anybody else? चलो आदित्य made an attempt. कोई और? करो attempt यार. हाई लेवल का ये मतलब नहीं, इतना तो समझ में आएगा. अभी आदित्य का हमेशा याद रखिएगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड का मतलब हाई लेवल नहीं होता है. ओके, एटलीस्ट ये तो मेमोरी में रह जाएगा. कम ऑन, मेक इट. अंकुर चलो बोलो कुछ, हाई लेवल का मतलब क्या है? Let them have a look over here. Lecture classroom कैसा है? If they wants to have a look at it. Okay, tell me, what do you understand by high level? Come on, make an attempt. Okay, let me answer. This is not good. So everybody has to make an attempt. गलत जाए उससे क्या डरना है? You don't have to worry if it goes wrong. Something that you do not really have to bother much. High level means you should be happy. Here the instructions are in English like language. That means when you write the code, you're not going to write in zeros and ones. तो normally machine से बात करते हैं तो it's all binary, isn't it? At least उतना तो मालूम है. Yes or no? Yes or no? Answer करो. Yes. Normally do you talk to the machine? अरे मला हे काम करून दे, do this? No, that doesn't happen. अगर वो Alexa है तो बात अलग है, और उसके पीछे भी लॉजिक क्या है, explain you as we go ahead. तो to talk to the machine is an electromechanical device. An electromechanical device is not going to understand English as a language. So you need to talk to the machine in the format that the machine understands. But Fortran was a high level language. High level language means here the instructions are in English like language. तो क्या एडवांटेज है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखने का? Shweta Becomes said, easy. for whom? It is more efficient to use for humans. Efficient to use for human. Use कौन करने वाला है? Machine use करने वाला है. It is more efficient for the programmer to write the instruction. Easy Yes. for the easy. Yes. Efficient नहीं कहेंगे. Yes. Efficient बिल्कुल नहीं कहेंगे. Easy है. Efficient है कि नहीं बाद में बात. Easy तो है. अगर मैंने machine की language सीख ली, that's very difficult to understand. If I write some zeros and one, will you understand? But if I write some English like instruction, add, multiply, divide, divide, is it not easy? तो English like words use करेंगे तो it always makes it easy for you to express your ideas. But the problem is machine doesn't understand English. अब क्या करें बताइए? It was the first high level language and it was English like language. And second answer that I'm giving is machine doesn't understand English. तो उसमें प्रोग्राम लिखने का फायदा क्या है? Come on somebody. क्या फायदा है? आपको समझ में आती है और मशीन को नहीं समझ में आ रहा है. आप एग्जीक्यूट करने वाले हो प्रोग्राम या मशीन इज गोना एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? Who is going to execute the program? Machine. तो आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Obviously machine. मशीन को समझना जरूरी है, और आपको तो समझने के लिए आसान हुआ, आपने इंग्लिश में लिख दिया, and तो मशीन doesn't understand that program is of no use. Then how does it work? ऐसा कैसे चलेगा? इंग्लिश में आप लोग और मशीन को नहीं समझ में आता इंग्लिश, तो ये कैसे काम करेगा? Any idea? Programming efficiency. Louder? Programming efficiency. प्रोग्रामिंग इफिशिएंसी तो बढ़ जाएगा. दैट्स वेरी ट्रू. आपको कोड लिखना आसान है, वो ठीक है, बट मशीन को समझना नहीं आता है तो उस प्रोग्राम का करे क्या जो मशीन को नहीं समझ में आती है? उस प्रोग्राम का क्या फायदा जो मशीन नहीं समझ पा सके? यस हशीबा, कम ऑन टेल मी. हशीबा आप हो या सो गए? यस सर. तो बोलो, ऐसे प्रोग्राम लिखने का क्या फायदा जो मशीन को नहीं समझ में आ रहा है? आपने उस दिन मुझे आंसर दिया था इस बात का. क्या करे so that the machine understands that program that we have written? अरे बोलो कोई तो. आई एम नॉट आस्किंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. This is not good. You have to answer. You have to tell me whatever you understood.
या गेस तो करना जरूरी है? बताइए, चलो. Unless you don't answer, there is no point in going ahead. Okay, Shweta has answered. Shweta, आप बात क्यों नहीं कर रहे? टाइप क्यों कर रहे हो? Let others also know that you are answering. Shweta, बोलो. Shweta has given the answer and that too is the right answer. श्वेता, आपने टाइप किया है तो बोलो भी. हाँ बोलो. Use that one word जो आपने लिखा है वो बताओ इसे. We can translate. We can translate. Very good. And for translating, you have used one word over here. क्या word use टाइप किया आपने? एक word टाइप किया आपने यहाँ. No sir, I haven't written anything. अरे आपने टाइप किया यहाँ. I can read that word. मैसेज डाला आपने मुझे. Sir, the compiler will convert Compiler. Who has code done this? into श्वेता ने टाइप किया ना ये. micro. श्वेता आप ही ने टाइप किया ना. Compiler is designed for that way. Sir, background there is a noise. किसने टाइप किया है? Okay. But anyway, somebody else was also answered. Translation was something that she was saying. And translation के लिए हमारे पास है compiler. Compiler has a duty, performs a task. क्या करता है task? ये जो high level language का instruction है, जो आपने English like language में लिखा है, इसे translate करता है into a format that the machine understands. Whatever machine language it understands, उस format को मैं वो translate करके देता है. कौन दे रहा है काम करके? Compiler. हशीबा, क्या हमने वही discuss नहीं किया था क्या उस दिन? किया था सर. तो फिर कैसे भूल जा रहे हो? तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कहीं मिले और बात करें और आपको याद नहीं रखना है. तो इंटरेक्शन भूलना नहीं है. ओके. तो देयर इज अ कंपाइलर व्हिच ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इनटू फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड. अब कौन सा फॉर्मेट मशीन को समझता है बाद में देखेंगे, बट हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे. हाई लेवल लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू एंड मी कैन अंडरस्टैंड. लो लेवल लैंग्वेज इज समथिंग दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड. तो बीच में बैठा है कंपाइलर. तो अभी एक कंपाइलर की स्टोरी है. मैं फोर्ट्रैन की बात क्यों कह रहा हूँ? दुनिया का पहला कंपाइलर फोर्ट्रैन में लिखा गया. एंड दैट हैज इन्फ्लुएंस ऑन सी लैंग्वेज, बिकॉज सी में भी हम लोग ऐसा है कोई कंपाइलर यूज करने वाले हैं. तो आई हैव पिक्ड अप लैंग्वेजेस जिसका सी के डेवलपमेंट पे कोई तो इम्पैक्ट है. तो फर्स्ट कंपाइलर दैट वाज एवर डिजाइन, ये कंपाइलर का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ? तो दैट स्टार्टेड विद फोर्ट्रैन. इट इज केस सेंसिटिव. द फर्स्ट एवर कंपाइलर वाज डेवलप्ड फॉर फोर्ट्रैन एज अ लैंग्वेज. ये मशीन इंडिपेंडेंट है. मशीन इंडिपेंडेंट मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन. आज मेरे पास एक लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप रहेगा, किसी के पास सुपर कंप्यूटर है. एवरी मशीन इज डिफरेंट. तो हर एक मशीन को डिफरेंट लैंग्वेज समझ में आती है. ऐसा नहीं कि जो लैंग्वेज मुझे समझ में आए वही लैंग्वेज सबको समझ में आए. दैट डजंट रियली हैपन. एवरी मशीन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. टू बी मोर टेक्निकल, इंटेल प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस अलग है, मोटोरोला प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन अलग है, एएमडी प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस अलग है. तो अगर ये अलग है तो मुश्किल हो गया यार. हाँ, बट फोर्ट्रैन का कंपाइलर कुछ ऐसा था. इट कुड कंपाइल द इंस्ट्रक्शंस कोड, इंग्लिश लाइक कोड, इनटू फॉर्मेट दैट दैट मशीन कुड अंडरस्टैंड, जिस पे के लिए वो कंपाइल किया गया है. तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. यानी आप इंग्लिश में लिखते जाओ, डोंट हैव टू वरी कि नीचे कौन सा मशीन है. इट विल रन ऑन एनी मशीन जिसके लिए आप उसे कंपाइल करोगे. बट अलग हर एक मशीन के लिए आपको सेपरेटली उसे कंपाइल करना होगा. एंड देन आजकल व्हेन इट कम टू सुपर कंप्यूटर, 1990 तक या 1990 तक फोर्ट्रैन वाज रूलिंग सुपर कंप्यूटर मार्केट. तो जहां कहीं सुपर कंप्यूटिंग में कोडिंग की बात थी, हर जगह फोर्ट्रैन. Why? Because it has fantastic support for mathematical library. देखो इसमें लिखा नहीं है, वो याद रखो. तो इसमें ना मैथ्स के लिए बहुत सपोर्ट है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ना, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट इसमें था. तो सुपर कंप्यूटर्स में एवरीवेयर फोर्ट्रैन वाज रूलिंग द मार्केट टिल द टाइम सी में मैथ्स की लाइब्रेरी विद सिमिलर सपोर्ट ऐड कर दिया एंड फोर्ट्रैन की स्टोरी खत्म हो गई. Nowadays, no new developer uses Fortran. They rather use C in supercomputers, not Fortran, because Fortran का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या था? मैथमेटिकल ऑपरेशन का. अब C में भी वो लाइब्रेरी आ चुकी है, और जब से C में वो मॉड्यूल आ चुका है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, अब Fortran की किसी को जरूरत नहीं है. Nobody uses Fortran today in supercomputing. They have all switched over from Fortran to C language. That's okay, but it was something till 1990, 54 से 90, 40 साल it ruled the market of supercomputers. Used in supercomputers very heavily. आज भी यूज किया जाता है, पर उतना हेवीली नहीं. जब 1990 तक जो यूज किया जा रहा था उतना हेवीली नहीं. 1990 क्यों कह रहा हूँ? Does that mean C came in 1990? No. C में very good support for mathematical operation came in somewhere around 80s, late 80s, early 90s में C में मैथ्स का सपोर्ट बहुत बढ़िया आ गया. एंड जब मैथ का सपोर्ट C में आ गया बहुत बढ़िया, हमें फोर्ट्रैन की जरूरत ही नहीं है. एंड दैट्स हाउ languages become popular, languages go out of popularity. ऐसा हो जाता है. ये बेसिक रीजनिंग है.
तो सी में बाद में ये सपोर्ट आ गया, पहले नहीं था। तो दैट वाज अबाउट फोर्ट्रैन। तो फोर्ट्रैन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर हमारे लिए क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है और दुनिया का पहला कंपाइलर डिजाइन किया गया इन सी लैंग्वेज, फोर्ट्रैन लैंग्वेज। और कंपाइलर क्या है, कंपाइलर डज वन बेसिक टास्क, कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट। इस केस में वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड, लो लेवल लैंग्वेज इज इजी फॉर द मशीन टू अंडरस्टैंड। लो लेवल मशीन को समझने वाला, हाई लेवल ह्यूमन को समझने वाला। तो ह्यूमन राइट्स द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्मेट दैट दे अंडरस्टैंड, कंपाइल उसे ट्रांसलेट करेगा इनटू द फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड्स। अब ये स्टोरी हमें और डिटेल में डिस्कस करनी है सी के साथ डिटेल में। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाउ दिस वाज 1954, just after the Second World War. Then came in a language called as IAL. IAL stands for International Algebraic Language. Now, when I use the word algebraic language, is आशीष क्वेश्चन पूछो ना अनम्यूट करके, सबके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आशीष। Sir, you Huh. said that computers only understand the binary languages. I said machine level language. हाँ, machine level language. मैंने Yeah. binary, हाँ। Then what is the use? Whatever the language we use, the हाँ, machine can't understand the correct, whatever we are trying to say or Correct. communicate. correct. No, in whatever form we tried, they didn't understand. But every language will have some words, commands, which a language like C has some command that Java may not have. तो C का लैंग्वेज जब ट्रांसलेट किया जाएगा, then it will get some work done from the machine जो Java नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. यानी हर एक लैंग्वेज के कमांड्स एक जैसे नहीं है। There are some features that C language has which Python doesn't have. तो Python के थ्रू वो काम नहीं कर पाएंगे जो C के थ्रू कर पा रहे हैं, या उल्टा भी हो सकता है, जो C के थ्रू कर पा रहे हैं वो Python के थ्रू नहीं कर पाएंगे, उल्टा भी हो सकता है। तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ कीवर्ड्स। हमने याद कहा, हमने कहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, दो चीजें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला क्या है, Syntax, सिंटैक्स, और दूसरा command. कमांड्स। तो जरूरी नहीं कि हर एक लैंग्वेज के कमांड एक जैसे हो। इज दैट ओके? सर मैं ये बोल रहा था कि अगर कंप्यूटर बाइनरी समझता है, करेक्ट, और हम टाइप करते हैं वर्ड्स में, करेक्ट। तो पर वो जो वर्ड है ना, जो हिंदी में वर्ड है, कोई जरूरी है कि वो इंग्लिश में हो वर्ड? नहीं, तो वो ट्रांसलेट कैसे होता है? हाँ, वो ट्रांसलेट कैसे होता है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट वो कंपाइलर की जादू है, बिकॉज हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर, सर सारे लैंग्वेज का कंपाइलर एक नहीं है। द ट्रांसलेटर फॉर सी इज डिफरेंट, ट्रांसलेटर फॉर कंपाइलर फॉर फोर्ट्रैन इज डिफरेंट। देखो, आप चाइनीज हो और मैं इंडियन हूँ, या वो एक रशियन पुतिन बैठा है और यहाँ मोदी साहब बैठे हैं, और दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। क्या एवरी वर्ड इन हिंदी इज देयर इन रशियन? नो। क्या एवरी वर्ड इन रशियन इज देयर इन हिंदी? नो। दे विल स्टिल कम्युनिकेट ना। यस। वो बीच में ट्रांसलेटर बैठा ना, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा इनटू कंपैटिबल फॉर्मेट दैट हिंदी। वैसे हर एक लैंग्वेज के पास अपने वर्ड्स है, कमांड्स है, तो उसका जो कंपाइलर है, द ट्रांसलेटर फॉर हिंदी इज डिफरेंट, ट्रांसलेटर फॉर एवरी लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन न्यू कंपाइलर, डिफरेंट कंपाइलर। दैट कंपाइलर इज सो डिजाइन्ड। अगर मैं, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने कहा पूछो ये क्वेश्चन, कंपाइलर होता क्या है बेसिकली, एक सिंपल सा आइडिया दे दो। कंपाइलर के पास एक डिक्शनरी, समझो कि ये एक्स सी, समझो सी फोर्ट्रैन लेते, फोर्ट्रैन के ये कमांड्स है, और ये कमांड लिखा जाए तो उसका ट्रांसलेशन क्या है, इसकी एक लिस्ट है, उसके बाद सिंपल सी डिक्शनरी है कंपाइलर में। और वो क्या करता है, हर एक कोड को पढ़ेगा, कोड में से वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेगा, और डिक्शनरी में देखेगा ये कीवर्ड है तो क्या करना है, ये कीवर्ड है तो क्या करना है। तो वो कीवर्ड आता है तो व्हाट इज एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, इसके पास की वैल्यू कॉम्बिनेशन। डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू। यस सर। तो फोर्ट्रैन के कंपाइलर के पास फोर्ट्रैन की डिक्शनरी है, सी के कंपाइलर के पास सी की डिक्शनरी है। तो सी का कमांड, ये कमांड आता है तो मुझे क्या करना है, ये कमांड आता है तो क्या करना है। यू आर राइटिंग इन इंग्लिश फोर्ट्रैन लैंग्वेज, कंपाइलर इज ट्रांसलेट इनटू करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो आप तो लिखते हो फोर्ट्रैन में, और कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्मेट दैट द मशीन अंडरस्टैंड्स। तो वो जो ट्रांसलेशन का कोड है ना, वो कंपाइलर डिजाइनर लिखता है। यानी सबसे मुश्किल काम क्या रहेगा, तो क्रिएशन ऑफ कंपाइलर। बिकॉज कंपाइलर क्रिएटर को क्या करना है, उस लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स है, जिसे आप वर्ड्स कह रहे हो, जिसे मैं कीवर्ड्स कहता हूं, उस कीवर्ड का करस्पॉन्डिंग मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन वहां लिखना है। समझ आ रहा है?
सर मतलब वो स्पेसिफिक कीवर्ड ही लिखना है, जैसे मुझे अगर डिलीट की जगह मैंने इरेज लिखा तो वो नहीं वर्क काम नहीं करेगा, करेगा। नहीं करेगा। लैंग्वेज में डिलीट है तो आपको डिलीट लिखना होगा, बिकॉज उस डिक्शनरी में क्या वर्ड रहेगा कंपाइलर के पास, डिलीट। डिलीट ही रहेगा, तो वो डिलीट का ही करस्पॉन्ड। इरेज बोलोगे तो बोलेगा आई डू नॉट नो व्हाट दिस कीवर्ड इज, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, बताएगा ये लैंग्वेज में नहीं, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, इनवैलिड आइडेंटिफायर ऐसा कुछ तो एरर देगा। इज दैट ओके? ओके सर। तो टास्क मुश्किल क्या है, कंपाइलर डिजाइन करना मुश्किल है, बिकॉज कंपाइलर डिजाइनर को क्या करना है, हर एक जो कीवर्ड आप अपने लैंग्वेज में यूज करोगे उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड देना है। समझ आ रहा है? उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड, आपने कहा ऐड प्लस, तो प्लस कैसे करना है, उसका जो कोड रहेगा वो आपके कंपाइलर डिजाइनर को देना है। तो आप लिखोगे प्लस, दैट विल गेट रिप्लेस विद द इक्विवेलेंट मशीन कोड। आपने लिखा मल्टीप्लाई, इट विल गेट रिप्लेस विद द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। तो कंपाइलर डिजाइनर का काम सबसे मुश्किल है। ओके, हमने अंडरस्टूड दिस डिस्कशन। क्विक फीडबैक, यस नो पे क्लिक करो, देखो आपके रिएक्शन में यस नो है, समझ में आया नहीं आया। रिएक्शंस पे देखिएगा नीचे यस नो दिखाई देगा, टिक मार्क क्रॉस, तो समझ में आया रहेगा तो टिक करो, नहीं समझ में आया तो क्रॉस करो। Everybody has to do that. That is a proof that you are listening to me. Yeah? Come on, everybody. खुशबू, मानसी, मृणाल, मुक्ता, गायब झालेत का, प्राजक्ता, शुभम, कहाँ गए आप? आंसर नहीं, वेदांत, रिस्पॉन्ड करो यार, मुझे पता तो चले आप सो नहीं रहे हो, ये वीडियो ऑन करके गए, घूमने नहीं गए हो, जैसे कॉलेज के लेक्चर लॉग इन करते हो चले जाते हो, तो ये वैसा नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है ये। ओके, आई वांट एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड। पहले 2-3 सेशन में तो लीनियंट हूँ, बट ओवर ए पीरियड जो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको येस और नो कुछ तो कहना होगा, उसको मैं टीम मीटिंग में से बाहर निकाल देता हूँ, बिकॉज वैसे भी आप सुन नहीं रहे हो। करेक्ट? इफ यू आर लिसनिंग यू हैव टू हैव अ रिस्पॉन्स, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, दोनों में से कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए। somebody of you have given thumbs up, thank you, क्या अच्छा समझ में आया, किसी ने क्लैप दिया है, that's also good, slap नहीं है, clap. Okay, तो then came in the language called as IAL. Now IAL क्या था? दूसरा एक लैंग्वेज था। अब उस जमाने में जितने सारे लैंग्वेजेस थे, they were used most often for scientific computing. तो IAL इंटरनेशनल अल्जेब्रिक लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज के बारे में क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं, ये तो कहीं पॉपुलर हुआ नहीं, ज्यादा देर यूज भी नहीं किया गया। इस लैंग्वेज की एक कुछ खासियत थी। What was that? It was an original name for Algol. It was the first time that international community came together to create a new language. ये फोर्ट्रान था ना, it was created by one fellow, एक अकेले बंदे ने बैठ के फोर्ट्रान क्रिएट कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक फोर्ट्रान क्रिएट किया गया था 1954 में। आज भी वो the fellow who had created Fortran, उसकी चेयर आज भी है। चेयर मतलब there is a seat for him in that particular college. क्या रिमेम्बरिंग हिम, तो दैट्स स्टिल देयर। एंड ये IAL क्या था? ओके, फोर्ट्रान वाज डिजाइन्ड बाय समबडी कॉल्ड जॉन बैकस, ओके, एंड ही वाज वर्किंग एट IBM, तो लॉन्ग टाइम बैक दिस लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड। ओके, 1954 कह रहा था मैं, अराउंड 54। कोई लैंग्वेज का ऐसा एक दिन नहीं आज लॉन्च किया, ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज अ पीरियड, समवेयर अराउंड 54 इट वाज डिजाइन्ड। इसके बाद आया IAL. IAL was the first time when the international community came together. They all people with different expertise came together. उन्होंने सोचा हर एक काम के लिए अलग लैंग्वेज ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा एक लैंग्वेज डिजाइन करेंगे सारे काम के लिए एक ही लैंग्वेज। एक लैंग्वेज पढ़ लिया प्रोग्राम ने, स्टोरी खत्म। With that objective in mind, they came together. There were representatives from industry. IBM से लोग थे, Intel तो था नहीं तभी, IBM से लोग थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कैम्ब्रिज, यहाँ से लोग थे। उन सब लोगों ने कोलैबोरेट करके एक नया लैंग्वेज क्रिएट किया, and that language called as IAL. It was immediately given a name as Algol, ALGOL. अब ये Algol क्या था? ALGO, Algo, and L for language, Algol, algorithmic language. It was a language, it was designed again for scientific computing, high-level language, English-like words. It was designed by international community to be a universal language. सोच ये थी कि डेवलपर को इतने सारे लैंग्वेज ना सिखाए। अभी अमन का एक क्वेश्चन था, why so many programming language are created? एक ही लैंग्वेज से काम नहीं हो सकता है? देखो ये स्टोरी में ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं, इसीलिए मैं हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। जब 1958 में उन्होंने सोचा इतने सारे लैंग्वेजेस क्यों पढ़े, दैट टाइम आल्सो देयर वर सेवरल लैंग्वेजेस, कोई एक ही लैंग्वेज बनाते और एक ही लैंग्वेज सीखो, सारा काम एक ही लैंग्वेज में। देखो मना, ध्यान से सुनो, तो ये एडवांटेज है। थ्योरी हम लोग पढ़ते ना,
तो उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हिस्ट्री में भी बहुत सारे आंसर्स है, सी ऐसा ही क्यों है, तो और सी कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आप तक जब तक सीखे नहीं, लैंग्वेज सीख के क्या फायदा है अगर आपको पता ही नहीं उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मालूम नहीं। तो अमन का क्वेश्चन है व्हाई सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड लकीली वी हैव रीच्ड टू दैट टॉपिक ओनली उसी समय पे। तो अल्गोरिथम डिजाइन करते समय ये सोचती कि एक ही लैंग्वेज बनाएंगे विच कैन डू एवरीथिंग, डेटाबेस वही हैंडल करेगा, ग्राफिक्स वही करेगा, टेक्स्ट प्रोसेसिंग वही करेगा, कैलकुलेशंस वही करेगा। विद दैट थॉट दे कम विद दिस लैंग्वेज एंड दे डिड इट सक्सेसफुली। बेस्ट ऑफ द माइंड्स फ्रॉम बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब इकट्ठा है, इंडस्ट्री लोग थे, एकेडमिक्स के लोग थे, एक बन के उन्होंने एक लैंग्वेज क्रिएट किया, अ लैंग्वेज कॉल्ड एज अल्गोल। एंड सोच क्या थी, एक ऐसा लैंग्वेज बनाएंगे जो यूनिवर्सली कॉमन एक्सेप्टेबल रहेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज रहेगा, एक ही लैंग्वेज सारे कामों के लिए। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज इन इट्स एरा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन लेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज जितने लैंग्वेजेस देखते हैं हम लोग, उनके डेवलपमेंट पे इस लैंग्वेज का इम्पैक्ट बहुत है। बट मेरा एक क्वेश्चन आप में से है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज के बारे में सुना था अल्गोल? रेज योर हैंड। आप में से कोई है जिसने लैंग्वेज आज के पहले ये लैंग्वेज का नाम सुना था अल्गोल? रेज योर हैंड, हैंड रेज करना है। ओके, श्वेता ने सुना था। ओके, तो 33 में से एक बंदे ने सुना था कि एक लैंग्वेज है अल्गोल। ओके, बट उसके आगे शायद कुछ नहीं मालूम रहेगा अल्गोल क्या था। या कुछ मालूम है श्वेता अल्गोल के बारे में और कुछ? नो सर। नो, बट सुना था। ओके, बट देन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, एक पहली बार ऐसी कोशिश की थी एक पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट वाज सक्सेसफुल। दे क्रिएटेड अ लैंग्वेज which could do all kind of tasks, डेटाबेस का भी टास्क करेगा, ग्राफिक्स भी करेगा, टेक्स्ट प्रोसेसिंग भी करेगा, कैलकुलेशन भी करेगा। बट दिस लैंग्वेज नेवर बिकेम पॉपुलर इन द मार्केट। क्या वजह हो सकती है? प्रोग्रामर्स रिजेक्टेड दिस लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज जो सब कुछ कर सकता है। अमन का क्वेश्चन था इतने लैंग्वेज क्यों पढ़े, एक ही लैंग्वेज पढ़े। ऐसा लैंग्वेज बनाया गया था, इट नेवर बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग्स द डेवलपर्स। डेवलपर्स में, रिसर्चर्स में डेवलप पॉपुलर हुआ, जिन्होंने नए लैंग्वेज डिजाइन किए उनके लिए में पॉपुलर था, बट डेवलपर्स में इट वाज नेवर पॉपुलर। क्या वजह हो सकती है कि आप भी उस जमाने में अगर डेवलपर थे, 1960s की बात है, 1958 में आया, आप क्यों दूर भाग सकते थे इस लैंग्वेज से, ऐसे लैंग्वेज से? क्या वजह हो सकती थी? अगर आप थे, समझो ऐसा एज्यूम करते, तो क्यों आप कोई लैंग्वेज रिजेक्ट करोगे एज ए डेवलपर? आशीष का काम मतलब कह रहा है इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। आशीष, यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है आपके लिए? यूजर फ्रेंडली मतलब क्या है? वो आपका दोस्त नहीं मान रहा? हाँ, Not easy as Fortran. नॉट इजी एज फोर्ट्रन। इजी का मतलब क्या है? इजी मतलब क्या है? Easy to understand. इजी टू अंडरस्टैंड। लेट मी टेल यू, इट वाज आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे। अब बोलो। एक मिनट, श्वेता का कहना है वेबसाइट वगैरह, अरे वेब नाम का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस जमाने में। इंटरनेट कुछ नहीं था, तो वेबसाइट की कोई बात ही नहीं थी। श्वेता का आंसर है कि वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट के लिए उसका कोई फायदा नहीं था। वो वेब नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस जमाने, किसी को नाम मालूम ही नहीं था इंटरनेट कोई आएगा। इंटरनेट इसके बाद 40 साल के बाद आया तो फॉरगेट दैट वाज नेवर अ केस। इंटरनेट की स्टोरी बाद में, वो भी डिस्कस इस स्टोरी में आएगा, इंटरनेट का इम्पैक्ट। एनी अदर आंसर? इट वाज डेफिनेटली नॉट यूजर फ्रेंडली, बट ये नहीं कहा उसका इंग्लिश लाइक वर्ड्स नहीं थे। इंग्लिश लाइक वर्ड्स से तो आसान है पढ़ना, बट स्टिल इट नेवर बिकेम पॉपुलर। क्या और कोई गेस करना चाहेगा? इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे, फोर्ट्रन के जैसे ही थे, फिर भी वो पॉपुलर नहीं हुआ। क्या गेस करना चाहेगा कोई? गेस ही करना है, इसका तो आंसर कुछ हो नहीं। एनी गेस, एनी मोर गेस? ओके, लेट्स मेक एन अटेम्प्ट। Aman, which college are you from? Surya College of Engineering, sir, Nagpur. Nagpur. Okay. Aman, where are you from? Wardha, sir. Wardha. Listen, I asked Aman, where are you from? Wardha. Aman, what's your age? Sir, 18, sir. 18? Yeah, Wardha. हाँ. Wardha. Your age is sir. Wardha? Hello, sir. Your age is Wardha? नाही, sir. नाही, असं काय काय बोलता का सर? एज कुठे वर्धा असतं का? Age is 18, correct? So look at this. When I ask you what's your age, your answer is different. When I ask you where do you stay, your answer is different. I asked you what's your college, your answer is different. Yes or no? क्या सारे क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर था? नाही, सर. नहीं, प्रत्येक प्रश्नाचा आंसर वेगळा आहे. हाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट? आपने कैसे सही आंसर दिया हर बार? हर बार अलग आंसर क्यों दिया आपने?
सवाल अलग थे ना सर। सवाल अलग थे, ये सवाल अलग थे इसलिए आंसर भी अलग आए, करेक्ट। मैंने सवाल अलग कैसे पूछा है अमन? कम ऑन, एनीबॉडी कैन आंसर। या अलग सवाल कैसे पूछे मैंने आपसे? हाउ डिड आई कम्युनिकेट डिफरेंट? सवाल कैसे दिए मैंने अलग? कम ऑन। सर दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी। दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट थे, बट मैंने वो कम्युनिकेट कैसे किया अमन से? हाउ डिड अमन अंडरस्टैंड मेरी रिक्वायरमेंट अलग है? तीनों बार मेरी अलग रिक्वायरमेंट थी, इसको कैसे समझ में आया? कम ऑन, थिंक ओवर, एक्सप्रेस योरसेल्फ। सवाल अलग थे कैसे? बिकॉज आपने उसको बोल के बताया बोल के बताया, क्या बोला मैंने? वर्ड्स कि यूज आपकी किए। रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो एक्सप्रेस कैसे किया? बाय यूजिंग सम वर्ड्स, सम वर्ड्स, हाँ करेक्ट। यस यानी मैंने क्या कहा था, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स है वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड्स है, वोकैबुलरी है, यस करेक्ट। तो मैंने वर्ड्स यूज किए। एक जगह मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, प्लेस, वेयर यू रिसाइड। सेकंड मैंने कॉलेज के बारे में पूछा। थर्ड मैंने उनके एज के बारे में पूछा, एज, कॉलेज। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, so that every command has a different meaning. To get some other, so I was operating on Aman and Aman was responding. Aman was doing what I was asking him to do. तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, Aman was a machine which was responding to my instructions. But to get that work done, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालने के लिए मुझे हर बार अलग कमांड फायर करना पड़ा। यस। Now look at this story. अब आते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। ये किसका था? अमन का ही क्वेश्चन था, why so many languages। अभी एक ही लैंग्वेज में सारे काम करने, तो मुझे लाइन ड्रॉ करने का कमांड और इनपुट, डेटा इनपुट लेने का कमांड क्या एक हो सकता है क्या? नो। मुझे No. अभी टाइम क्या है भी जानना है और आपका नाम क्या जानना है, उसके लिए एक ही वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या मैं? नो। नो। तो इफ आई वांट टू नो योर नेम, आई हैव टू यूज अनदर सेट ऑफ वर्ड्स। इफ आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, आई हैव टू यूज अनदर सेट ऑफ वर्ड्स। सेम थिंग वाज विद प्रोग्रामिंग। तो अल्गोल में, ऑल्दो इट allowed you to carry out all operations, but to perform different operations there were different commands. Means they have limited words. लिमिटेड नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा वर्ड्स थे। जितने ज्यादा कमांड उतने ज्यादा ऑपरेशंस। Not the particular one. पर्टिकुलर थे, बट कैसे है, कोई भी काम करवाना है तो हर एक काम के लिए कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो अगर आपको एक ही लैंग्वेज चाहिए सारे काम करने के लिए, तो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे। इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे। डिक्रीज किसने कहा क्या? नो। नो, इंक्रीज होंगे। इट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कमांड्स विल इंक्रीज। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश के 500 या 1000 वर्ड्स मालूम है, मीनिंग्स मालूम है? जब तक बैरॉन की वर्ड लिस्ट ले लेते हैं तो आधे वर्ड लिस्ट देखने पता चलता है ऐसा भी कोई इंग्लिश में वर्ड है क्या? अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, लुक एट अ बैरॉन वर्ड लिस्ट। इतनी थिक बुक आती है, सिर्फ वर्ड्स और मीनिंग्स, वर्ड्स और मीनिंग, और आधे वर्ड्स तो पहली बार जिंदगी में देखे रहते, ऐसे वर्ड्स आते थे। तो अगर नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जाए, कमांड्स बढ़ते जाए, तो आपके और मेरे जैसे प्रोग्रामर के लिए वो लैंग्वेज याद करना, हर एक वर्ड का मतलब क्या है ये याद रखना और सही जगह पे सही वर्ड यूज करना, ये आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज ऑल द कमांड्स एंड टेल मी इन एवरी लैंग्वेज एवरी टाइम यू आर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस? नो। क्या हर एक प्रोग्राम में सब कुछ करना होता है क्या? मुझे कैलकुलेशन भी करना होता है, डेटा प्रोसेसिंग भी करना होता है क्या? सारे काम हर समय करने होते हैं क्या? यस और नो? नो, एक समय तो सारे ऑपरेशन करने नहीं है। तो दिस लैंग्वेज बिकेम टू बल्की, द नंबर ऑफ कमांड्स इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट, प्रोग्रामर स्टार्टेड फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज। लैंग्वेज पढ़ना ही मुश्किल है। जो लैंग्वेज डेवलपर पढ़ नहीं पाएगा, इज देयर एनी चांस दैट डेवलपर विल यूज दैट लैंग्वेज? तो जो उन्होंने सोचा था जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है लैंग्वेज का, एक ही लैंग्वेज सारे काम करने का, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। द लैंग्वेज बिकेम टू बल्की, टू वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू लर्न। और जो आप पढ़ नहीं पाओगे वो यूज कर पाएंगे क्या? No, sir. And No. Aman, does that answer your question? Aman, does that answer your question? अरे यार हाँ ना कुछ तो बोला अमन। Okay, so the language, the number of commands बढ़ जाए तो it is very difficult to learn the language, and this was a hard learned lesson. डिजाइनर को पहली बार समझ में आया, फैंटास्टिक लैंग्वेज बनाया, सब कुछ कर सकता है, प्रोग्रामर रिजेक्टेड।
पढ़ने के लिए मुश्किल है, इतने लैंग्वेज कमांड याद नहीं रह सकते हैं और सही जगह पे सही कमांड यूज करना है। सी लैंग्वेज में देयर विल बी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स, 50 भी कीवर्ड नहीं है और उसके लिए हम लोग 90 दिन लगाने वाले 50 कीवर्ड का मतलब समझने के लिए। और अगर 100-200 कीवर्ड्स आ जाए तो इट इज गोना बी ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू लर्न द लैंग्वेज। तो एंड नॉट एवरी टाइम यू रिक्वायर टू कैरी आउट ऑल द ऑपरेशंस। सो दिस लैंग्वेज was a miserable failure, एकदम फेल हो गया। People did not, developers did not accept this language. The programmers, the designers of the language had a lesson of their life. They understood ऐसे काम करके चलेगा नहीं। अगर आप होते डिजाइनर तो आप इसमें से लर्निंग क्या लेके क्या करेक्शन करते? समझो आप थे डिजाइनर और आपने देखा यार ये फेल हो रहा है लैंग्वेज और इसकी वजह आपको समझ में आ गई, तो आप क्या करेक्टिव एक्शन लेते अगर आप डिजाइनर होते तो? Shweta has given the right answer. She says lesser command, and that is precisely what they did. Lesser command मतलब जो commonly used command नहीं है उनको हटा देंगे. We'll make an attempt to only focus on those commands that are used very often. उतने commands रखेंगे ताकि language पढ़ना आसान हो जाए. And that's precisely what the people did. And they came up with a new language called as CPL, Combined Procedural Language. It is very complex language, syntactically based on Algol 60, pure functional subset. यानी Algol 60 का ये subset था. उसमें बहुत ज्यादा कमांड्स थे, इसमें नंबर ऑफ कमांड्स कम कर दिए विद एन अटेम्प्ट टू मेक दिस लैंग्वेज मोर सिंपल। बट ये फिर भी कॉम्प्लेक्स था, इसको भी प्रोग्रामर ने रिजेक्ट कर लिया। इट वाज डिजाइन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, दोनों ने मिलकर लैंग्वेज डिजाइन किया था। और ये क्या था? नया कुछ नहीं था, इट वाज अ सबसेट ऑफ अल्गोल। हाँ, एक इसमें चीज नहीं आई, प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ? बिकॉज सीपीएल इज नॉट द ओनली लैंग्वेज जो अल्गोल के बाद आया। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज ये वर्ड प्रोसीजरल है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी भी प्रोसीजरल है। सी के फोर्ट्रान क्यों डिस्कस किया? बिकॉज उसमें भी कंपाइलर है। सीपीएल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इसमें जो प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट है वही हमें सी में पढ़ना है, मास्टर करना है, प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट क्या है। तो यानी इसका भी इन्फ्लुएंस है सी पे, हम वही थ्रेड डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। कोई गेस कर पाएगा स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज? ऐसा जोरा टाइप पहला था स्ट्रांगली टाइप, यस और नो? यस और नो? स्ट्रांगली टाइप यानी सिर्फ स्ट्रांग लोग टाइप कर पाएंगे इस लैंग्वेज में, यानी हाशिबा, यामिनी, इनको तो जाना होगा, इनके स्ट्रेंथ नहीं है, क्या टाइप करेंगे? ऐसे कुछ रहेगा, यस और नो? कौन कह रहा है नो? आशीष, ये नहीं होगा स्ट्रांगली टाइप मतलब स्ट्रांग लोग भी टाइप कर पाएंगे ना? क्या नो आशीष? sensitive case language. Pardon? Sensitive case language. ओके, केस सेंसिटिव है या नहीं है? स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या होता है? हर एक लैंग्वेज के पास है ना एबिलिटी होती है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अगर आप मुझे देख रहे हो तो ये वीडियो देख रहे हो, ये अलग टाइप का डेटा है। अगर मेरा फोटो लेते हो तो ये इमेज है, दैट्स अनदर टाइप ऑफ डेटा। टेक्स्ट है, अलग टाइप का डेटा है। नंबर्स है, अलग टाइप का डेटा है। रियल नंबर है, अलग टाइप का डेटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग टाइप का डेटा है। डेटा हैज टाइप, डेटा का अपना अपना एक फॉर्मेट है। तो हर एक लैंग्वेज के पास एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सम लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर्स, सम लैंग्वेजेस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट, नंबर, वीडियो, ऑडियो, इनमें भी डिफरेंस समझ में आ सकता है। आई एम नॉट मेकिंग ऐसे कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इट कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो लैंग्वेजेस हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स, और डेटा का भी टाइप है और अलग अलग टाइप के डेटा को आइडेंटिफाई कर सकता है। हर एक लैंग्वेज के पास कम ज्यादा होता है एबिलिटी है। तो अगर मुझे एक आपका नाम स्टोर करना है तो नंबर टाइप का वेरिएबल लेना होगा या टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल लेना होगा? टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल लिया और उसमें अगर नंबर स्टोर करोगे तो एरर देगा। अगर मैंने टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें नंबर स्टोर किया तो एरर, नंबर टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें टेक्स्ट स्टोर किया तो भी एरर। यानी स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या है? जिस टाइप का कंटेनर वेरिएबल आप बनाओगे उसमें सिर्फ उसी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मिसमैच है बिटवीन द कंटेनर, वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करने वाले हो, एंड द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू स्टोर इनटू दैट वेरिएबल, उसमें अगर मिसमैच है इट विल इमीडिएटली जनरेट एन एरर। उसके लिए क्या है? अल्गोल हैड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है समझ में आता था, रियल नंबर क्या है समझ में आ सकता था, इंटीजर क्या है समझ में आ सकता था, बुलियन वैल्यू क्या है समझ में आ सकता था। तो वो कहता है अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो कंटेनर बनाइए, वेरिएबल बनाइए जिसमें आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है तो अलग टाइप का वेरिएबल बनाइए। मिसमैच नहीं होना चाहिए बिटवीन द डेटा एंड द वेरिएबल इन विच यू आर ट्राइंग टू स्टोर डेटा। इसमें मिसमैच आ गया, एरर। इसको कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। अल्गोल वाज
CPL was a strongly typed language. That means you cannot have a mismatch between the type of the container and the type of the value that you are trying to store inside the container. Container मतलब मेरा variable, इसमें mismatch नहीं हो सकता है. That was strongly typed. I hope everybody understood the concept of strongly typed. Note करके रखो. In notes में ये नहीं है. सिर्फ लिखा है it is not a strongly typed language. It was implemented on a machine called as Titan. ये machine का नाम था, which later led to much simpler BCPL. यानी story of CPL continued. ये CPL was also complex. उनको लगा यार ये भी complex है, इसको और भी आसान करना जरूरी है. To make it simple, 1960s में one more language was created called as Basic CPL. BCPL. Basic CPL. It was created by a fellow called as Martin Richard, again at Cambridge University. यानी सारा यूरोप में ही काम हो रहा है, अपने यहाँ कुछ नहीं हो रहा है. And it had some features in it and so on. तो सबसे important चीज क्या है? It was a simplified version of CPL. With that, we will stop over here. तो कोशिश क्या की गई? It was made so simple. अब इसका भी एक फीचर है CPL का. I'll stop with that note. CPL कैसा था? Strongly type था. Strongly type का मतलब क्या है? Anybody? Come on, recollect करो. Strongly type का मतलब क्या अभी समझाया मैंने? The ability to different between different types. No, that is data types. Every language has an ability to differentiate between different data types. Most of the languages. That is not strongly typed. Strongly type का मतलब क्या है? Only a particular type of data is stored. In a particular type of variable. That means the type of the variable and the type of the data cannot be mismatched. Are you getting my point? यानी आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, बट किस में? टेक्स्ट वेरिएबल में. आप इन नंबर स्टोर कर सकते हैं नंबर टाइप के वेरिएबल में. आप इमेज स्टोर कर सकते हैं इमेज टाइप के वेरिएबल में. एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप के वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते. ये स्ट्रांगली टाइप है. कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टोर कर पाएंगे, दूसरा कुछ स्टोर नहीं कर पाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी. तो बीसीपीएल में उन्होंने देखा, अब आकाश ने जो कहा, इट हैड एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. अब मुझे बताइए, अगर मुझे अलग अलग टाइप को आइडेंटिफाई करना है तो हर एक के लिए और एक कमांड आ जाएगा. यानी बुलियन के लिए एक कमांड, इंटीजर के लिए एक कमांड, कॉम्प्लेक्स के लिए एक अलग कमांड. अरे पहले कमांड ज्यादा थे, अब हर एक टाइप के लिए एक और एक कमांड याद रखना ये भी मुश्किल है. तो बीसीपीएल में उन्होंने कोशिश की इस लैंग्वेज को जितना सिंपल कर सके. दे डिड अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप. डेटा टाइप से हटा दिया. यानी बीसीपीएल में एक ही टाइप का डेटा मैटर क्लोज. यू क्रिएट अ वेरिएबल एंड यू कैन स्टोर एनीथिंग इनटू इट. आज आपने फोटो स्टोर कर लिया, अलाउड. आपने वीडियो स्टोर कर लिया, अलाउड. तो वीडियोस नहीं थे ज्यादा, बट ऑडियो टेक्स्ट स्टोर कर लिया, अलाउड. नंबर स्टोर किया, अलाउड. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में. कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप से हटा दिया. देयर वाज नो डेटा टाइप. वेरिएबल है और डेटा है, कोई भी टाइप का डेटा ले लो और कहीं भी स्टोर कर लो. ओके, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप. सच लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज टाइपलेस लैंग्वेज. तो एक जगह सीपीएल वाज स्ट्रांगली टाइप, तो दूसरी जगह बीसीपीएल, in an attempt to make this language as simple as possible, they removed this concept of data types. अब इसका कोई एक ड्रॉबैक था, उतना डिस्कस करके रुकेंगे. क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर डेटा टाइप्स भी हटा दिया तो? अगर मैंने लिखा a प्लस बी, रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है a और b का. नहीं सर, वैल्यू कुछ तो दिया हुआ है, उसका आंसर है हाँ, एडिशन. एडिशन का रिजल्ट आना चाहिए. दैट मीन्स यू नीड टू डू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ एडिशन. बट ए और बी में अगर मैंने आपका नाम स्टोर किया आकाश भाकरे, तो आकाश भाकरे का एडिशन करोगे या मल्टीप्लाई करो तो आकाश इंटू भाकरे नंबर ऑफ टाइम्स करोगे? नो सर. नो, इलीगल. तो ये ऑपरेशन इलीगल एक कब पता चलेगा आपको? अगर आपने डेटा का टाइप आइडेंटिफाई किया तब जाके पता चलेगा कि आकाश डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो सकता है. आकाश को 2 से डिवाइड किया तो आ एंड देन काश, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. बिकॉज इस टाइप के डेटा पे ये ऑपरेशन नहीं कर सकते. तो फॉर यू टू आइडेंटिफाई कौन से डेटा पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा टाइप का जानकारी होना जरूरी है. तो अगर आपको मालूम ही नहीं है डेटा का टाइप क्या है, तो कौन सा ऑपरेशन लीगल है और कौन सा ऑपरेशन इलीगल है ये हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. यस सर. ओके, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम. एंड विद दिस नॉलेज कि स्ट्रांगली टाइप करेंगे तो भी मुश्किल है और टाइपलेस करेंगे तो भी मुश्किल है. तो बीसीपीएल का फीचर क्या था? टाइपलेस. सीपीएल का फीचर क्या था? स्ट्रांगली टाइप. तो विद दिस ऑल लर्निंग्स came in a new language, and what is that? That's a story for tomorrow. So when we meet next, we'll continue with our discussion. Our next session, Monica madam will be telling you about the next session. We'll continue with this history, and now it's time for us to come to C language. C के नजदीक आ गए, but उस पे ये सारे जो अभी हमने learning देखा, इस सबका best of all था वो यहाँ आ चुका है. How and why
और ये कैसे डेवलप होता गया और आज कौन सा सी है मार्केट में, वो भी विल डिस्कस. सी में कैसे चेंजेस होते गए, दैट इज व्हाट विल डिस्कस. सो नेक्स्ट सेशन विल कंप्लीट विद अ डिस्कशन ऑन सी, हिस्ट्री ऑफ सी. वी आर लुकिंग एट हाउ डिड दिस लैंग्वेज प्रोग्रेस, और इसमें जो फीचर्स है अभी उन फीचर्स ऐसे ही क्यों है, उसके आंसर्स विल बी हैविंग. तो विद दैट नोट we'll stop here today. Thank you all for staying back so late. We extended the session because पहला introduction में गया and then we started with the topic. I wanted something that you carry today. So hope to see you for the next session. Enroll कीजिएगा and we'll continue with the further discussion. Any queries if you have right now, please ask before we stop for today. Anybody has any question? कम से कम जाते हैं feedback दो, समझ में आया कि आज जो डिस्कस किया, yes no feedback दो. सर ऑफलाईन बॅच नाहीये का? ऑफलाईन पण होतील ना नंतर, आता ऑफलाईनला परवानगीच नाहीये. आपली बॅच पण ऑफलाईन होऊ शकते का नंतर चालू झालं तर? होऊ शकते, पण परवानगीचं काय खरं आहे ना, हे एकदा येत आहेत परत काढतायत परवानगी. ऑफलाईन त्यापेक्षा हे आपण भेटतो हे पण ऑफलाईन आहे, तिथं मी फक्त तुमच्या समोर उभा राहणार, इथे बसलोय तुमच्या समोर, एवढाच फरक आहे. व्हॉट डिफरन्स डज इट मेक? सर टायमिंग हा एकच असणार का? दैट मोस्ट प्रॉब्ली ये रहेगा, आपको बात किया जाएगा आपसे, सबके लिए जो कन्वीनियंट रहेगा उस हिसाब से किया जाएगा. बट मोस्ट प्रॉब्ली ये रहेगा या 5:30 रहेगा, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. Any other question, anybody? Sir, you will send setup resources today only? No, after you take the admission. Those who take admission उन्हीं के लिए शेयर किया जाएगा. हाँ, एक आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा और टेकिंग नोट्स के एडवांटेज क्या है वो मेल आ जाएगा. बट दोज हु टेक एडमिशन उन्हीं के साथ फिर रिसोर्सेज शेयर किया जाएगा, टेक्स्ट बुक, सॉफ्टवेयर, ये उन्हीं के साथ आएगा जो एडमिशन लेंगे. तर ऍडमिशन पण ऑनलाईन प्रोसेसच करायची का ऑफलाईन करायची? कसंही करा, तुमची मर्जी. जवळ असाल, राहायला निगडीत असाल, पुण्यात असाल तर येऊन ऑफलाईन करा. लांब असाल, आता आकाश वर्ध्यात आहे, तो इथं कुठे येणार आहे, ही विल पे ऑनलाईन. एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो बिफोर यू स्टॉप फॉर टुडे. Okay, so thank you all for attending the session today. See you next time. Take care. Love you all. Bye bye. Monica madam will get in touch with you. Okay. Good night. Okay, sir.